kind of cryptographic thing. So I would like to seek some update from you guys, like how far you guys have got knowledge on VPNs or any security product, be it ASA or any other vendor. That I would like to know. So if anyone from the joinees who have worked on ASA or any other vendor of firewall, I would like to need some update on that. So if you guys can paste it in the chat that if you have worked any firewall, mention yes, or if not, then mention no. Waiting for your update. No, 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 no. Quite a fantastic audience. No, yes, and no, yes, no. All right, so majority says no. We'll go with the majority. Cool. All right, let me share my screen. Guys, please mute yourselves. Yeah, just be on mute. If you have any questions, unmute yourself, throw it. That's it. All right. Okay, able to see the screen, I think. So mainly we'll be discussing VPNs. So before starting with the VPNs, I would like to give you a brief introduction on the ASA. So like, if I'm not mistaken, then 60% of the product, 60% of the market uses ASA instead of other products. Yeah, a couple of other products are also available in the market, like Fortinet, Palo Alto, PAN, Juniper, and some other things are ForcePoint, and so many other stuff is as well there. But since most of them uses ASA, even I use ASA. Yeah, I've got knowledge on Fortinet, other things, but yeah, we'll be discussing stuff about ASAs. So before So, starting with the just one question: is firewall, Cisco ASA firewall, is like a router? not really, we cannot call a firewall like a router, but yeah, CLI is bit different. CLI is bit different. Some of the commands are changed in the ASA to distinguish between router and ASA. So anyways, we'll go through the CLI as well. I do have my Okay. setup ready, so we can walk you through. That's not the case. So I was just talking about the features like firewall can also do routing, like router. Firewall, a router can do some security stuff like ASA. We Yeah, can, so definitely that is achievable through ASA as well. Even you can do the routing on ASA, and you can do the security features on ASA. Likewise, you can do the routing features on routers. You can configure what do we say, firewall features, security features on router as well. But practically speaking, if you talk about what do we say, then basically firewalls are meant for firewalling and routers are meant for routing. So if you'll put pressure on the firewall for routing, then yeah, obviously your firewall would not be able to process that traffic. Like if you are running EIGRP with huge data, huge routing stuff, if you are running BGP with huge routing stuff, not able to process, you will be facing some what do we say, performance issues on the ASA, because the CPU and the other things, the kind of inspection those are being defined on ASA are defined for what do we say, firewalling, not for routing. But yeah, even routing can be done on ASA. I hope that answers the question. yep. All right. Something is there in the chat. I'm looking to see that. All right, now I do have chat. Okay.
We can configure BGP in ASA. Yes, BGP is supported. OSPF is supported. EIGRP is supported. All the protocols are supported. That's not the case, but it goes with the perspective. If you are trying to configure any routing protocol over VPN, that will talk afterwards. That's not the thing. But since we are starting, so we'll start with basic ASA features first. All right. So basically, ASA is Adaptive Security Appliance, a product of Cisco. Earlier, it was called PIX. So PIX was kind of lighter stuff, but now we have ASA, and even in ASA, like so many new features are added nowadays. Earlier, those features were not there. Now, if we talk about vendor specific with the vendor perspective, then basically other products like what do we say, Fortinet and other things, they are including IPS, web filter, application filter, IDS, these things in a single module. Single module, I mean to say, you buy one chassis, you purchase one chassis, that is ASA, you pay for the ASA, you pay for other license, and yeah, you get all the features. Even with ASA, this was not the case, but nowadays we have FTD in the market, Firepower Threat Defense, and this Firepower Threat Defense has all the things inbuilt. Inbuilt, I mean to say, you have application filter, you have web filter, you have IPS, you have IDS. All the inspection related things are available in FTD, but with ASA, these things were not available. Yeah, you can configure these things, but you need to do a lot of configuration. But now with FTD, these things are inbuilt. All right. Okay, cool. So let me see. So this is my ASA. I hope everyone can see this ASA. So few things are there which on ASA are a bit different as compared with any other Cisco product. Any other Cisco product, I mean to say, let's consider a switch or a router. So when we go on the router, hang on guys. All right. Some people are telling me to use Hindi. All right. Okay. Cool. All right. ओके सो एएसए की अगर हम बात करें तो एएसए और राउटर के अंदर कमांड्स का कुछ बेसिक डिफरेंस है. बेसिक डिफरेंस इन द सेंस कि भाई स्विच पे आप जाते हो तो स्विच पे आप जाके चलाते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राउटर पे आप जाके चलाते हो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ. बट यहाँ पे अगर आप एएसए पे बात करोगे तो साहब आईपी नाम की चीज ही हटा दी, आईपी है ही नहीं, तो आईपी चलेगा ही नहीं. अब मुझे एएसए के इंटरफेस देखने, ये मेरा एएसए है, सबको दिख रहा होगा. इसके ऊपर मेरा 9.12 वर्जन चल रहा है, वही iOS चलता है. आप cisco.com से डाउनलोड कर लो और यूज कर लो. दूसरी बात, एएसए को मैनेज करने के दो तरीके होते हैं. आप CLI से भी मैनेज कर सकते हो और आप GUI से भी मैनेज कर सकते हो. सिंस इट इज अ सिक्योरिटी प्रोडक्ट, पीपल फील कंफर्टेबल, पीपल बहुत मतलब लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं इसको GUI से मैनेज करने के लिए. वो फीचर स्विच में भी है और राउटर में भी है, लेकिन लोग यूज नहीं करते हैं. लेकिन एएसए के केस के अंदर लोग उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ASDM. तो मेरे पास ASDM की भी इमेज है, यानी कि मैं इसको ASDM से भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं इसको CLI से भी एक्सेस कर सकता हूँ. टेलनेट SSH वो सारी चीजें इसमें चलती हैं. अगर मैं मेरे अब इस डिवाइस की बात करूं, ASA की बात करूं, तो इस ASA के अंदर अगर मुझे इंटरफेसेस देखने हैं तो मुझे आप स्विच या राउटर पे चलाते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वो यहाँ पे नहीं चलती है. यहाँ पे आप चलाएंगे शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ. दिस इज द कमांड टू चेक द इंटरफेसेस ऑफ द ASA. ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, बाकी सारी कमांडें वही चलती हैं. शो रन पाइप वही चलेगा, लेकिन इस पाइप के अंदर आप राउटर स्विच में सेक्शन यूज करते हैं. यहाँ पे सेक्शन का फीचर नहीं है. यहाँ पे आप या तो इंक्लूड यूज करिए या फिर बिगिन यूज करिए या फिर आप एक्सक्लूड यूज कर सकते हैं. ये तीनों चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं. ये है मेरे डिवाइस का CLI. बाय डिफॉल्ट ASA के अंदर मैनेजमेंट इंटरफेस एक आता है, वो मेरा अभी डाउन है क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी मैंने इस इंटरफेस के थ्रू कर रखी है, मैं मैनेजमेंट यूज नहीं करता.
अगर अपन मोटा मोटा इस मैनेजमेंट इंटरफेस की बात करें तो वही बात है साहब कि ASA के अंदर प्लेन्स होती हैं, जो कि आप अदर डिवाइसेस में भी देखते हैं कि डेटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैनेजमेंट इंटरफेस विथ ASA is designed only to serve the management traffic. This cannot be used to serve your data traffic. यानी कि आप इसके ऊपर डेटा ट्रैफिक कभी भी मत भेजिए मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर। आप इस मैनेजमेंट इंटरफेस से SSH ले लो, टेलनेट ले लो, ASDM के थ्रू एक्सेस कर लो, वो पॉसिबल है, वो चलेगा, वो अलाउड है। लेकिन अगर आप इस पे डेटा ट्रैफिक भेजोगे, कई सारे इश्यूज आते हैं, अजीब अजीब किस्म के इश्यूज आते हैं और उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सिस्को को भी बोलोगे तो वो यही बोलेंगे कि साहब डेटा इंटरफेस दे रखे हैं 8 1G और 10G दोनों के, इनको यूज करो डेटा ट्रैफिक के लिए। ये मैनेजमेंट के लिए होता है। तो ये की फीचर है, की पॉइंट है कि मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर कभी भी डेटा ट्रैफिक नहीं भेजना चाहिए। अगर आप भेजेंगे तो वो तकलीफ देगा, परेशानी क्रिएट होगी, उस पर चीजें चलेंगी नहीं। डेटा चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि चलेगा नहीं, चलेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, आपका डेटा इंपैक्ट होगा। सो बेटर यूज डेटा इंटरफेसेस, नॉट मैनेजमेंट इंटरफेसेस। दूसरी थिंग, मैं बेसिक कमांड्स बता देता हूँ आपको ASA के बारे में। बाकी आप, मैंने इस ASA को मेरे ESXi सर्वर के अंदर चला रखा है, तो उसके लिए मुझे OVF टेम्पलेट चाहिए होता है, वो मैंने सिस्को से डाउनलोड कर रखा है। तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं अपनी लैब के अंदर ASA चलाने का। एक तो आप या तो cisco.com से अगर प्रॉपर अकाउंट है तो वहां से जाके आप OVF टेम्पलेट डाउनलोड कर लो, और अगर अकाउंट नहीं है तो बाहर से ढूंढ लो कहीं से OVF टेम्पलेट, और उस OVF टेम्पलेट को आप VMware में भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ESXi में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। यू हैव बोथ द ऑप्शंस। अगर आपके पास ESXi या VMware सपोर्टेड पीसीज नहीं है, जो लोड नहीं झेल पा रहे हैं, तो आप साहब GNS में चला लो। GNS के अंदर जैसे राउटर स्विच चलाते हैं उसी तरह से ASA की इमेज आप डाउनलोड करके उसमें भी अपलोड करके GNS के अंदर चला सकते हैं। दूसरी बात, रिकमेंडेशन, when you are using GNS, I would advise you to use PIX in GNS, not ASA. तो PIX और ASA में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो भी फायरवॉल ही थी, ये भी फायरवॉल ही है, नाम बदला है, कुछ फीचर्स बदले हैं, बाकी है वही चेंज। लेकिन जो आप ये करने जा रहे हैं VPN वगैरह, बेसिक फायरवॉलिंग, ये चीजें आप उसके अंदर भी कर सकते हैं पिक्स के अंदर। तो पिक्स क्या है, पिक्स लोड नहीं लेता है। लोड आई मीन टू से कि CPU यूटिलाइजेशन उतना नहीं करेगा GNS के अंदर जितना आपका राउटर करता है। पिक्स इज ए लाइट डिवाइस बट ASA इज ए हैवी। सो ASA आप ना डाल के पिक्स डाल सकते हैं। सो पिक्स से काम आपका हो जाएगा। सिंस ये मैंने मेरे ESXi में डिप्लॉय कर रखा है, सो आई एम गेटिंग बेटर परफॉर्मेंस। अनदर सर थिंग, ESXi और VMware में क्या आप क्या बोल रहे हैं? आई मीन वर्क स्टेशन यू मीन? हाँ जी। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ESXi तो आप अपने सर्वर में डिप्लॉय करते हैं, फिर उसको आप अपने VMware क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करते हैं, और ESXi के अंदर सारा डिप्लॉयमेंट होगा। तो उसमें OVF फाइल आप सीधा डिप्लॉय कर सकते हो अगर आपके पास ESXi है तो। अगर आपके पास ESXi नहीं है तो ये कुछ इस तरह का, ये जो वर्क स्टेशन होता है VMware, इसके अंदर भी आप सीधा फाइल जाके डिप्लॉय कर दो। ये GNS 3 में नहीं होगा, ये अपना वर्क स्टेशन के थ्रू मैनेज होगा? नहीं, GNS 3 में भी हो जाएगा। GNS 3 में मैंने जैसे कि बोला कि अगर आपको GNS 3 में फायरवॉल चलानी है, अगर आपको GNS 3 में फायरवॉल चलानी है तो उसके अंदर भी आपको डिवाइस की इमेज तो डालनी पड़ेगी। तो आप ASA के बजाय पिक्स की इमेज डालो GNS के अंदर। तो पिक्स लाइट डिवाइस है, GNS आपका उसको हेल्दीली सपोर्ट कर देगा विदाउट एनी इंटरप्शन। ओके सर। All right, I've got a question. In ASA, if we execute show interface IP command, can see protocol up, but in router or switch, it is showing down, down. Is there any specific reason? Great. So there is no specific reason, Rajesh, since this is a virtual device. That is the reason I'm seeing admin interfaces are admin down, but protocol is up.
but my interfaces are admin down. So if I'll bring any interface up, it will be admin down and protocol up. So this is a virtual device, so all the interfaces are connected to my vSwitch. That is the case you are seeing protocol up. If you have a real device, you will see protocol down. All right, let me reconnect, guys. So show interface IP brief, ये मेरा इंटरफेस है. एक अब नया इंटरफेस ले लेते हैं हम. अब हम इसमें एक आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं. तो मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस 2 पे जाना पड़ेगा. यहाँ पे जाके पहले मैं इसको नो शट करूंगा. नो शट करते ही मेरा इंटरफेस अप आ जाएगा. अब यहाँ पे मैं इस पे आईपी असाइन कर सकता हूँ. आईपी असाइन करने के लिए वही कमांड है, आईपी एड्रेस. स्टैटिक आईपी आप असाइन कर सकते हो 172.16.1.10. ये मेरा सबनेट और एंटर. ये मेरा आईपी मैंने असाइन कर दिया. इस पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये मेरा आईपी इस पे असाइन हो चुका है. अब इसमें एक दूसरा फीचर जो है एएसए के अंदर, उसको हम बोलते हैं नेम इफ. अगर किसी ने दूसरे फायरवॉल्स पे काम किया है तो उनके लिए है जोन्स. जोन्स आई मीन टू से कि आप एक इंटरफेस को एक स्पेसिफिक जोन में डाल दो और उस जोन को क्लब कर लो आप. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसमें, अब उसके लिए कमांड चलती है साहब शो नेम इफ. आप डिवाइस को नाम से यूज कर सकते हो यहाँ पे. तो अभी मैंने मेरे गीगाबिट इथरनेट 00 को इनसाइड बना रखा है साहब, और उसकी सिक्योरिटी लेवल है 100. सिक्योरिटी लेवल की भी हम बात करेंगे. गीगाबिट इथरनेट 0/1 को मेरा नाम है MGMT और उसकी सिक्योरिटी लेवल है 0. अभी हमने गीगाबिट इथरनेट 0/2 पे काम किया है. तो अब हम इस पे नेम इफ, यानी कि अब इसको मैं नाम से ट्रीट करने के लिए इस पे कमांड यूज करूंगा नेम इफ. तो नेम इफ के बाद में आप इस इंटरफेस को जिस नाम से यूज करना चाहते हैं वो नाम आप इस पे डाल सकते हैं. जैसे मैं डाल देता हूँ टेस्ट, ये एंटर. अब मैं शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ करूंगा तो साहब मेरे को मेरा इंटरफेस अब दिख रहा है. शो रन इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/2, ये मुझे सारी कॉन्फ़िग दिखा देगा. तो मेरे इंटरफेस का नाम है टेस्ट, सिक्योरिटी लेवल है 0 और आईपी एड्रेस है ये. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नाउ आई विल स्टार्ट विथ सिक्योरिटी लेवल. इफ एनी डाउट्स गाइस शूट द क्वेश्चंस. ये इन और आउट क्या है सर? जो नाम ही है या नेम ही है या कुछ इसका फीचर? ये नाम है इन और आउट. आप इंटरफेसेस को नाम से ट्रीट कर सकते हैं. ये आपके ब्रीफली जब समझ में आएगा जब मैं आपको सिक्योरिटी लेवल बताऊंगा. ओके. Any questions, guys? Or else I'll treat this as an acknowledgement. Yeah, keep going. Cool. Sir, ये can be access management port from the WAN network? No, your voice is not clear. I'm not able to hear. So if there is some problem in voice, you can write down your question over chat. Like we have got a new question, can we assign IP without using name if? Name if. Okay. Yeah. So Rajesh, yes, you can assign IP, which I already did. I assigned an IP address and after that I assigned a name if. So yes, you can assign IP without using name if. सर थोड़ा बेसिक इसका वो बताओ ना, जैसे फिजिकल और इसमें पोर्ट कितने पोर्ट होते हैं? क्या वैन पोर्ट भी होता है, लेन होता है, मैनेजमेंट होता है? नहीं, वैन पोर्ट, लैन पोर्ट, वो जो एएसए के जो मॉडल्स आते हैं उन पे डिपेंड करता है. कई एएसए के मॉडल्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर वैन और लैन पोर्ट स्पेसिफिक डिफाइंड होता है. फॉर एग्जांपल हम जैसे समझने की कोशिश करें, हाँ तो मैं पहले क्लियर कर दूं, एजेंडा मेरे पास कुछ नहीं है. अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ अलग चीज जाननी है आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, मैं वो स्टार्ट कर दूंगा.
एजेंडा मेरे पास नहीं है. So since I started with basic I mean to say कि ports वगैरह, नेम इफ वगैरह, सिक्योरिटी लेवल, ASA क्या है वगैरह वगैरह, वो मैंने स्टार्ट किया. अगर आपको कुछ अलग चीज जाननी है वो आप चैट में लिख दो या बोल दो, हम वो भी पढ़ लेंगे. We have a question, can we access management port from the WAN port? You can access the management port using the WAN port. Yes, you can access, but now that depends how you wanted to access. Do you have some kind of specific feature to access that? Do you have some kind of connectivity? आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे WAN पोर्ट फॉर एग्जांपल गीगाबिट इथरनेट 00 है, उस पे मेरा पब्लिक आईपी है साहब 1.1.1.1 और मेरे मैनेजमेंट पोर्ट का आईपी है 10.10.10.10/24. तो अब आप कहना ये चाहते हैं कि मैं 1.1.1 से 10.10. एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं? तो नहीं, जवाब ये होगा नहीं. और अगर आप 1.1.1.1 तक कनेक्ट हो चुके, उसके बाद में आप 10.10.10.10 एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. Cool. All right. So now Raghuveer's question. So जो मॉडल्स पे डिपेंड करता है रघुवीर, यहाँ पे अगर हम देखें इस ASA के बारे में, लेट मी लॉग इन बैक. Just a second guy, let me check the connectivity. एक मेरा क्वेश्चन था. हाँ जी बोलिए. कि जैसे हम लोग यहाँ पर जूनिपर का फायरवॉल यूज कर रहे हैं, तो अभी जैसे सिस्को और जूनिपर में क्या मतलब कमांड सेम है या मतलब कुछ चेंजेस है? हाँ, सिस्को और जूनिपर में तो बहुत चेंज है बलराम बाबू. नहीं, जैसे अभी आईपी जैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है या कुछ भी हमें जैसे इंटरफेस पे कोई आईपी देना है, तो सेम ही कमांड्स रहेगी या वो अलग रहेगी? किसमें, सिस्को पे या जूनिपर पे? जूनिपर पे और सिस्को पे, दोनों पे क्या डिफरेंस रहेगा, मतलब दोनों में मेनली? डिफरेंस तो रहेगा क्योंकि सिस्को पे कमांड सेम है, जूनिपर पे कमांड्स अलग हैं. नहीं, वो वैसा ही डिफरेंस है जैसा सिस्को और जूनिपर के राउटर्स या स्विचेस में कमांड्स का डिफरेंस होता है ना. अब जैसे जूनोस जो जूनिपर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप जीएनएस पे डाल के और प्रैक्टिस कर सकते हो. मतलब उसमें जैसे कमांड चलती है शो इंटरफेस ब्रीफ, है ना, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ नहीं चलेगा, आईपी नहीं लगेगा. तो ऐसे मतलब शो बीजीपी नेबर, शो आईपी बीजीपी नेबर की जगह शो बीजीपी नेबर. तो ऐसा मतलब छोटे मोटे उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं. एग्जैक्टली सिस्को सीएलआई जैसी कमांड्स तो नहीं हो सकती, लेकिन आप उस पे जीएनएस पे जूनोस डाल के और उस पे देख सकते हो, ये हो जाता है उस पे भी. कमांड गाइड कोई भी, जूनिपर की भी डॉक्यूमेंटेशन आप पहले से काफी बेहतर हो रही है, तो आप उसको कमांड गाइड किसी को भी डाउनलोड करके एक बार देखो, उसमें मिल जाएंगे कमांड्स. कमांड्स तो चेंजेस है, वैसे कुछ नहीं, वैसे कुछ चेंज नहीं होगा बलराम जी. उसके अंदर सिर्फ कमांड्स का डिफरेंस होगा. भाई फायरवॉल इज मेंट फॉर फायरवॉलिंग, सो ऑब्वियसली जूनिपर भी वही काम करेगा, ASA भी वही काम करेगा, पालो अल्टो भी वही काम करेगा, फोर्टिनेट भी वही काम करेगा. बात ये नहीं है कि फोर्टिनेट मेरा बियॉन्ड लिमिट जाके काम करेगा, नहीं, वो भी ASA की तरह ही काम करेगा. अगर किसी ने ASA पे काम कर रखा है तो वो जूनिपर पे भी काम कर सकता है, किसी ने जूनिपर पे काम कर रखा है तो पालो अल्टो पे भी काम कर सकता है, फोर्टिनेट पे भी काम कर सकता है. एक फायरवॉल अगर आपको बेसिक आइडिया है कि हाउ फायरवॉल के पास जब पैकेट आता है तो उस पैकेट को कैसे ट्रीट करता है और आगे फॉरवर्ड करता है, अगर ये आपको पता है तो आप हर फायरवॉल पे काम कर सकते हैं. फायरवॉल काम सारे एक ही वे में करते हैं, अलग अलग वे में काम नहीं करते हैं.
कुछ फैंसी फीचर्स हो सकते हैं जो किसी फायरवॉल में हैं, किसी में नहीं है। जैसे सिस्को का फायर पावर है, उसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो बड़े एनहांस्ड वे में दिए हुए हैं, जो कि एएसए से थोड़े बेहतर माने जाते हैं। तो वही कुछ बेसिक फीचर सारे सेम है सिक्योरिटी के, एडवांस फीचर्स में कुछ एक आध इधर उधर होता रहता है फायरवॉल्स में। All right, so we have a question, and ASA has its feature of NatPat. So where is NatPat more practical on router or firewall? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ भाई। आप नेटिंग राउटर पे भी करते हैं, फायरवॉल पे भी करते हैं। तो अगर किसी कस्टमर ने एक राउटर ही खरीद रखा है और उस राउटर पे उसने DHCP का पूल बना रखा है, राउटर से 4 स्विच कनेक्ट कर रखे हैं और 24 पोर्ट के स्विच हैं, तो काफी सारे 250-300 यूजर कनेक्टेड हैं राउटर के पीछे। तो अब इंटरनेट मेरा राउटर पे टर्मिनेट हो रहा है, तो मैं पैट राउटर पे भी बना सकता हूँ और पैट में ASA पे भी बना सकता हूँ। सो यस, मोर प्रैक्टिकल ऑन राउटर और फायरवॉल? नो, treats same, both the same way. No, there is no specific. Is ASA support only IDS or IPS as well? It supports both, Deepak. दोनों सपोर्ट करता है, IPS IDS दोनों सपोर्ट करता है। ASA के ऊपर आपको अलग से मॉड्यूल डालना पड़ता है, जैसा कि मैंने इनिशियल स्टेज पे कहा था, लेकिन FTD में वो इनबिल्ट आता है। अब ASA के ऊपर आप एडिशनली डाल के यूज कर सकते हो, लेकिन पहले IPS का एक अलग डब्बा ही आता था, चासी ही अलग आता था, तो वो IPS अलग मेंटेन होता था। Cool. So second thing was WAN and LAN port. Okay. So मैं वही बता रहा था कि कई फायरवॉल्स ऐसी हैं, कई मॉडल्स ऐसे हैं सिस्को ASA के, जिनमें WAN पोर्ट और LAN पोर्ट स्पेसिफिकली डिफाइंड होता है। डिफाइन आई मीन टू से कि 8 पोर्ट का फायरवॉल है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0 इज अ WAN पोर्ट, यानी कि आप इंटरनेट की लिंक लीजिए, यहाँ पे सीधा टर्मिनेट कर दीजिए, बीट स्टैटिक और बीट DHCP। और आपका 0/1 से लेके बचे हुए जो पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे LAN के अंदर कंबाइंड होंगे और वो एक स्विच भी होंगे। सो यानी कि आप इन पोर्ट्स के ऊपर आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप डायरेक्टली अटैच कर सकते हो और यूज कर सकते हो, लेकिन वो मॉडल टू मॉडल डिफर करता है। ये मेरा जो है, ये मेरा VASA है, ASA-V है, फिजिकल चासी नहीं है। So हम name if हमने कर लिया था। Name if is used to define a name on the interface, like which zone is it is. Now we have security level. So हमने gigabit ethernet 0/2 पे नाम दिया था टेस्ट। सिक्योरिटी लेवल क्या काम करती है? सिक्योरिटी लेवल जो है, अब तो खैर ये कोलैप्स हो चुका है, अब इसको यूज नहीं करते हैं। दूसरी फायरवॉल्स में तो शायद ये पहले भी नहीं था, ये सिर्फ सिस्को ASA में आता है या फिर पिक्स में आता था। फोर्टिनेट, पालो अल्टो, उनमें मैंने नहीं देखा है सिक्योरिटी लेवल वाला फीचर, ये सिर्फ ASA पे ही आता है। तो सिक्योरिटी लेवल क्या होता है? अगर मैं मेरी बात करूं, शो नेम इफ मैं चलाता हूं, तो मेरे जो इनसाइड इंटरफेस है उस पे मेरा सिक्योरिटी लेवल 100 है, आउटसाइड इंटरफेस पे मेरा सिक्योरिटी लेवल 0 है, टेस्ट इंटरफेस पे मेरा सिक्योरिटी लेवल 0 है, मैनेजमेंट इंटरफेस पे मेरा सिक्योरिटी लेवल 100 है। मेरे ASA के ऊपर जब मैं किसी इंटरफेस पे जाके, फॉर एग्जांपल हम एक नया इंटरफेस ले लेते हैं, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/3, यहाँ पे मैं डालता हूं नेम इफ इनसाइड नाम असाइंड ऑन अनदर इंटरफेस, तो मैं वहां से हटा देता हूं। शो IP जो कमांड है, वो शो IP कमांड चलती है, उसमें नेम इफ और IP एड्रेस दोनों साथ आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपका डिवाइस फेल ओवर में है तो दूसरे फायरवॉल के IP एड्रेस आपको नीचे दिख जाएंगे, इसलिए हम यूज करते हैं शो IP। 0/0 से नो नेम इफ, नो नेम इफ से मेरा नाम हट जाएगा। ऐसा नहीं है कि नो
नाम लिखोगे तो हट जाएगा, नो नेम इफ करना पड़ेगा आपको। अब मेरा इनसाइड नेम कहीं नहीं दिख रहा है। अब मैं मेरे 0/3 पे जाके असाइन कर देता हूं नेम इफ इनसाइड। तो साहब जैसे ही मैंने इस पे नाम डाला इनसाइड, इसने अपने आप सिक्योरिटी लेवल 100 ले लिया। इनसाइड को छोड़ के अगर आप कुछ भी नाम डालोगे उसका सिक्योरिटी लेवल 0 होगा, लेकिन इनसाइड पे बाय डिफॉल्ट 100 होगा। अब साहब सवाल आता है कि ये वैल्यूज हैं क्या? 0, 50, 1 कुछ भी सेट कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि 100 और 0 ही सेट करोगे, नहीं, जो आपके मन में आए आप वो सेट कर सकते हो। 0 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। अब हम इन वैल्यूज के ये 100 से ऊपर भी कर सकते हैं? नहीं, 100 से ऊपर नहीं कर सकते। हाँ नहीं, वैसे ही फॉर क्लैरिफिकेशन फॉर लार्जर ऑडियंस। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये है, तो अब 100 इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड 0 इज द लोवेस्ट वैल्यू। इनके बीच में क्यों आता है फीचर अब आपका अंदर का वैल्यू क्यों लेता है और क्यों लेता है? वो बाय डिफॉल्ट कोड में सेट है। अच्छा, कि इनसाइड नेटवर्क मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन का अंदर का नेटवर्क, 100 मतलब हायर सिक्योरिटी लेवल, कि हाँ जी साहब नेटवर्क है, इसको आप सेफ रखना, इसलिए उस पे 100 होता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो होता क्या है, फ्रॉम, कहने का मतलब फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल यू कैन नॉट रीच टू हायर Guys, give me a minute. I'm getting something else. This is UCS chassis. I'm supposed to access ASA. Give me a moment. इंटरनेट से कौन बंदा क्या एक्सेस लेने की कोशिश कर रहा है? तो इंटरनेट हमेशा अनट्रस्टेड जोन होगा। 0 मतलब अनट्रस्टेड जोन। तो सिंस 0/1 के पीछे मेरे ट्रस्टेड यूजर्स ही कनेक्टेड थे और 0/3 के पीछे भी मेरे ट्रस्टेड यूजर्स ही कनेक्टेड थे, फिर भी मेरा पिंग ब्लॉक होगा। क्यों? क्योंकि जो 0/1 इंटरफेस है उस पे मेरा सिक्योरिटी लेवल 0 है और 0/3 पे 100 है, तो 0 से 100 में नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई बंदा 0.3 वाला 0.1 को रीच करना चाहता है तो रीच कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम हायर सिक्योरिटी लेवल से लो सिक्योरिटी लेवल पे जा रहे हैं। दिस इज क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स please paste it in the chat or speak up. Okay, can you repeat? Okay, I'll repeat. No doubt, guys. Okay, at what security level we can reach to highest security one? As I have told Utsav, you can reach till 100, not beyond 100. 100 is the last. Okay, so I'll try to repeat. I'll try to draw some diagram if that is possible. Okay, sorry about bizarre drawing. And this is the symbol of ASA, just to understand. यहाँ पे हम लिख देते हैं inside. एक मेरा इंटरफेस यहाँ पे कनेक्टेड है,
इसको मैं बोल दूंगा इनसाइड 2। यहाँ पे मेरा इंटरनेट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, इनसाइड पे मैं जैसे ही आईपी एड्रेस और नाम डालूंगा, नाम आई मीन टू से नेम इफ, but at what value of security level between 0 to 100 we can reach to highest? You can use any value, Utsav, between 0 to 100 to define your zones. For example, 0 is by default set on all the zones. So if your outside zone is connected and having a security level of 0, then you can define your inside zone as 10, because 10 is higher than 0, right? So you can use any value from 0 to 100 to define your zone. हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, इनसाइड पे मेरा 100 है, इसको आप 100 ही समझना। इनसाइड 2 पे मेरा फॉर एग्जांपल 100 है और यहाँ पे 0 है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इनसाइड से इंटरनेट पे जाने की कोशिश करोगे, ये क्या है, हम नाम इसलिए यूज करते हैं ताकि समझने में आसानी हो। बेसिकली आप नाम डिफाइन कर देते हैं कि हाँ जी मेरा यूजर इनसाइड जोन पे कनेक्टेड है, इनसाइड 2 पे कनेक्टेड है या DMZ पे है, कहाँ पे है, तो इसलिए नाम यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग इंटरफेसेस कि हाँ जी मैं 0/0 पे कनेक्टेड हूँ, 0/1 पे कनेक्टेड हूँ, उस तरीके से। तो इनसाइड मेरा 100 है। कोई भी यूजर अगर यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो ही कैन रीच विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 100 डिफाइन कर रखा है और यहाँ पे 0 डिफाइन कर रखा है। लेकिन कोई भी यूजर अगर 0 से 100 पे आने की कोशिश करेगा, साहब दैट इज ब्लॉक्ड, दैट इज नॉट अलाउड। लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर साहब इनसाइड वाला यूजर इनसाइड 2 को कम्युनिकेट करना चाहता है, वो तो कर ही सकता है। हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। 100 ही इस पे है और 100 ही इस पे, लेकिन ये करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ASA इंटरफेस टू इंटरफेस ट्रैफिक भी ब्लॉक कर देगा। तो उसके लिए आपको ASA को बताना पड़ेगा कि साहब 100 to 100 अलाउ कर दो, उसको मत ड्रॉप करो। क्यों? क्योंकि मेरा एक यूजर ट्रस्टेड जोन से दूसरी ट्रस्टेड जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज अलाउड। Cannot reach from any lower value to higher. So if you are at 100 in zone 1, then only can reach to 100 in zone 2. I'm coming to that, Virender. सर जब ये एक ट्रस्टेड जोन से अपने ट्रस्टेड जोन के दूसरे ट्रस्टेड जोन पे पैकेट भेजेगा और रिसीव होगा, तब भी ये इसका जो पैकेट फिल्टरिंग करेगी फायरवॉल। हाँ जी बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि आपका एक यूजर हु सिटिंग बिहाइंड ट्रस्टेड जोन 1, फॉर एग्जांपल इनसाइड, एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू टॉक टू अ यूजर हु सिटिंग बिहाइंड इनसाइड 2, बट इनसाइड एंड इनसाइड 2 बोथ हैव द सेम सिक्योरिटी वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट ये ड्रॉप होगा। उसके लिए आपको ASA को बताना पड़ेगा। उसके लिए आप कमांड चलाते हैं सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक। तो यहाँ पे आपको परमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, इंटर और इंट्रा। क्या कह रहा है? परमिट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट इंटरफेसेस एंड जोन्स विथ सेम सिक्योरिटी लेवल। और दूसरा बोल रहा है परमिट कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स कनेक्टेड टू द सेम इंटरफेस एंड डिफरेंट इंटरफेस इन द सेम जोन। कहने का मतलब पहली लाइन ये कह रही है कि अगर कोई बंदा 100 to 100 जाने की कोशिश करे तो उसको परमिट कर दो। तो हमें ये कमांड लगानी पड़ेगी, तब जाके ASA 100 to 100 ट्रैफिक अलाउ करेगा, अदरवाइज वो ट्रैफिक अलाउ नहीं करेगा। इज दिस क्लियर गाइस?
Yes. Yes. Yes, yes. Cool. All right. Okay, cool. Since the security level stuff is clear, we'll roll back to something else. All right, so name if is clear, security level is clear, and interfaces is clear. All those things. Now let's talk about basic routing. Basic routing, I mean to say कि भाई, for example, ये मेरा interface है, इस पे मैंने टर्मिनेट कर लिया. ISP टर्मिनेट करने के बाद में मुझे यहाँ पे कुछ बेसिक कनेक्टिविटी करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो यहाँ पे आप आप IP डाल दें, IP एड्रेस 255.0 आउटसाइड. तो नेम इफ देते, इसकी सिक्योरिटी लेवल कितनी हो गई? 0. अब नेम इफ दे दी, IP दे दिया, अब एक डिफॉल्ट राउट भी डालना पड़ेगा, तभी तो कनेक्शंस बाहर जाएंगे, वरना जाएंगे कैसे? तो डिफॉल्ट राउट डालने के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ता है? इसमें आपको ये नाम वाली जो चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जोन है, ये जोन तो आपको असाइन करना ही पड़ेगा. विदाउट दिस फायरवॉल इज हाफ, यू कैन नॉट यूज ऑल द फीचर्स. सो अब आप जब राउट डालेंगे तो आप भाई, जैसे राउटर की अगर हम बात करें तो राउटर में आप नहीं वो डिस्कस नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आप राउट डालेंगे आउटसाइड के थ्रू. यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा कि आपको डिफॉल्ट राउट किधर से डालना है. मैं कहना ये चाह रहा था राउटर में कि आप जब राउटर में VRF यूज करते हैं तो उसमें आप राउट डिफाइन नहीं करते कि गो थ्रू दिस VRF, गो थ्रू दैट VRF. उसी तरह से यहाँ पे जोन्स के थ्रू आप राउट डिफाइन कर सकते हो. तो कई बार पूछ लेते हैं लोग कि डिफॉल्ट राउट 2 हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? भी हो सकते हैं. ये ऐसे में आप के डिफॉल्ट, तो मैं 2 ही लिख देता हूँ, 0 स्पेस 0. और अब मेरा गेटवे मैंने डिफाइन कर दिया 1.1.1.10. तो मेरी एक आउटसाइड जोन पे मैंने ऑलरेडी एक राउट डाल रखा है, सिंस ये नहीं लेगा. तो इस तरह से आप एक राउट ऐड कर सकते हो उसके अंदर, राउट 00. अगर मैं ये राउट रिमूव करूंगा तो मेरा कनेक्शन चला जाएगा ASA का, वो मैं करूंगा नहीं. ओके जी, सिक्योरिटी लेवल हो गई, नेम इफ हो गया, IP एड्रेस असाइनमेंट हो गया. अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक VPN features. So guys, if you are comfortable to discuss basic VPN features, then we can start. Or if you want to discuss something more about ASA, let me know the topic so we can discuss. Just basic, not advanced. I think VPN introduction, what VPN generally we use for, and VPN के different flavors जो है, high level overview, so that हमें ये समझ आ जाए कि अच्छा इधर ये VPN चलती है, मैं इधर AnyConnect से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो ये कौन सा VPN है ना, साइड टू साइड, या जो भी एक बेसिक आइडिया मिल जाए VPNs के बारे में जो different. Yes sir, that definitely still, since we have like couple of more minutes and hours left, so we are those can be discussed. वो थोड़ा डिफरेंट डिवाइस होती है. OP, I didn't catch you. मतलब मैं कह रहा हूँ जो VPN टाइप्स है ना, पॉइंट टू ऐसे जो कई टाइप्स है वो, तो उससे पता चलेगा कौन सा उसमें VPN में ये है, ये मतलब हम यूज करते हैं कौन से क्या है. जी बिल्कुल. उससे पहले थोड़ा सा ASA के कुछ मॉडल्स वही डिस्कस करना चाह रहा था
तो मैंने आप लोगों से पूछा है कि अगर आप VPN डिस्कस करने के लिए रेडी हैं तो आप यस लिखिए। अगर आपको कुछ और ASA के बारे में जानना है, जो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, तो वो आप लिखो। अगर आपके नहीं है तो हम VPN वाले टॉपिक पे आगे बढ़े। ओके, VPN तो लास्ट है ना, अभी तो फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना, ये सब पॉलिसीज क्या होती है नहीं जो नहीं नहीं रघुवीर, इतना इतना एक सेशन में होना मुश्किल हो जाएगा। हम तो नहीं सोच रहे थे आज ऐसे फायरवॉल की क्लास। नहीं, अगर मैं एक्सेस लिस्ट वगैरह उठा लूंगा तो वो शाम के 9 बजे तक चलेगा, उसमें पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। VPN, थैंक यू। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट इंस्पेक्शन, स्टेटफुल इंस्पेक्शन। तो वहां पे दो टाइप होते हैं, एक तो होता है स्टेटफुल इंस्पेक्शन, एक होता है स्टेटलेस इंस्पेक्शन। सो बेसिकली स्टेटफुल इंस्पेक्शन क्या होता है? स्टेटफुल में फॉर एग्जांपल यहां से इनसाइड जोन से मेरा एक पैकेट गया बाहर के लिए, आउटसाइड जोन के लिए। यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी लेवल 0 है, यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी लेवल 100 है। होता क्या है, जब मेरा ट्रैफिक इस ASA के इस इंटरफेस पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचने के बाद में ASA कुछ चेक्स करता है। चेक्स आई मीन टू से, वो चेक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ। राउट लुकअप, नेट, एक्सेस लिस्ट और IPS है नहीं है, IDS है नहीं है, बाकी एप्लीकेशन वगैरह 7-8 चेक्स होते हैं, बहुत सारे चेक्स करता है। सारे हम बात नहीं करेंगे, मेन 3-4 जो हैं वो 3-4 ये हैं। राउट लुकअप है, नेट है, एक्सेस लिस्ट है और IPS IDS वगैरह, अगर ये इनके थ्रू ये ट्रैफिक पास होगा या नहीं होगा, ये आप डिफाइन कर सकते हो अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो बेसिकली 3 चेक्स होंगे। तो यहाँ पे मेरा पैकेट पहुंचा, यहाँ पे पहुंचने के बाद में ASA उसको फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद में राउट देखेगा, राउट देखने के बाद में नेट देखेगा, नेट देखने के बाद में एक्सेस लिस्ट देखेगा कि हाँ जी ये अलाउड है बाहर जाने के लिए या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ट्रैफिक आया, मैं यहाँ पे नेटवर्क्स भी लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहेगी। 1.0/24 ये मेरा ASA का है, तो यहाँ पे मैंने 1.1.10/24 लिख दिया और यहाँ पे मेरा 1.1.1/24 ये मेरा गेटवे हो गया। तो जब मेरा ट्रैफिक 192.168 1.10 इसका मैं IP मानता हूं, तो यहाँ पे भी एक इंटरफेस चाहिए, तो वो हमने बना रखा है। ये मान लो आपकी यहाँ पे 192.168 1.1 गेटवे है, .1 इज द गेटवे। तो जब यहाँ से ट्रैफिक आया, तो ट्रैफिक आने के बाद में यहाँ पे पहुंचा तो इसने देखा ASA ने कि हाँ जी 192.168 1.10 से ट्रैफिक आया है एंड ही इज डेस्टिन्ड टू सम पब्लिक IP, फॉर एग्जांपल www.google.com। तो अब ASA क्या चेक करेगा? ASA चेक ये करेगा कि यहाँ पे इस IP के लिए बाहर जाने के लिए कोई रूल है या नहीं है। तो ये पहले राउट लुकअप करेगा, राउट इसको मिल जाएगा, राउट मिल गया, हाँ जी डिफॉल्ट राउट है, बाहर फेंक दो। अब एक्सेस लिस्ट चेक करेगा, क्या एक्सेस लिस्ट के अंदर कहीं परमिट है 192.168 1.0। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ASA के अंदर मुझे किसी लैन सबनेट को इंटरनेट अलाउड करना है, तो मैं IP एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा, उस एक्सेस लिस्ट में लिखूंगा एक्सेस लिस्ट परमिट IP मतलब पूरा प्रोटोकॉल आ गया, TCP UDP यूज नहीं किया है मैंने, IP यूज किया है, तो सारा स्टैक आ चुका है मेरा। तो जो भी ट्रैफिक आएगा, बीट TCP बीट UDP, सारा अलाउड होगा IP के थ्रू। तो मैंने IP और मैंने सोर्स में लिख दिया 192.168 1.0। डेस्टिनेशन में क्या लिखूंगा? I'm waiting for answers on the chat. डेस्टिनेशन में क्या होगा? डेस्टिनेशन ये है कि मैं चाहता हूं मेरे सारे लैन यूजर्स इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। इंटरनेट को ध्यान से सुनिए, इंटरनेट के अंदर कई सारी चीजें आएंगी। लोग लिख रहे हैं 1.1.1, ये तो गलत है, गेटवे गलत, .10 रॉन्ग,
Guys, respond. Respond to the chat. Don't worry about right or wrong answers. Just respond according to your knowledge. Okay. Still, I have not received any proper response. Okay, I'll repeat my question. मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे ASA के इनसाइड जोन पे एक सबनेट चल रहा है 192.168.1.0 which is this, और मेरे फायरवॉल के ऊपर इंटरनेट आया हुआ है, एयरटेल का, टाटा का या किसी का भी। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ से जो मेरा लैन सबनेट है उसको मैं इंटरनेट दूं, तो उसके लिए फायरवॉल पे मुझे रूल तो बनाना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रूल बनेगा उस रूल के अंदर आप सोर्स में तो ये दोगे, क्योंकि आपको इसको इंटरनेट देना है 192.168.1.0 को, लेकिन डेस्टिनेशन में क्या दोगे, ये पूछ रहा हूं मैं। ओके, ओके, हाँ जी, अब सही जवाब आए हैं, बहुत बढ़िया। डेस्टिनेशन मेरा होगा एनी, क्योंकि मैं मेरा ट्रैफिक इंटरनेट पे भेज रहा हूं और उसको मैं फिल्टर नहीं कर सकता। हाँ जी, आप फिल्टर कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिक एक्सेस देना चाहें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ ये यूजर cisco.com यूज करें, तो आप FQDN बेस्ड एक्सेस लिस्ट बना लो। FQDN बेस्ड यानी कि उसमें क्या होगा, आपका फायरवॉल अपने आप जाके ढूंढ के लाएगा कि cisco.com के IPs क्या हैं, तो वो FQDN बेस्ड एक्सेस लिस्ट हो गई star.cisco.com। तो सिर्फ ये यूजर्स cisco.com एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कुछ एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एनी आएगा यहाँ पे, तो मैंने ये एनी अलाउ कर दिया। हम बात कर रहे थे स्टेटफुल इंस्पेक्शन की। तो नेट पास, सॉरी, एक्सेस लिस्ट पास हो गया, ASA को एक्सेस लिस्ट मिल गई कि हाँ जी, कमिंग फ्रॉम 192.168.1.0 allowed to any, alright, no issues, I have access list. Now we need a NAT। भैया आप इंटरनेट पे प्राइवेट IP तो लेके जाके क्या करोगे, कुछ एक्सेस नहीं कर सकते, आपको पब्लिक IP ही चाहिए। तो मुझ इस ASA को यहाँ पे एक NAT रूल भी मिल गया कि मैंने पैटिंग कर रखी है आउटसाइड इंटरफेस पे सारा ट्रैफिक पैट होके जाने के लिए, तो इसको NAT भी मिल गया। अब इस ASA ने क्या किया, जब ये प्रोसेस हुआ, पैकेट आया, एक्सेस लिस्ट पास हुई, राउट लुकअप पास हुआ, NAT पास हुआ और बाहर चला गया, तो इस एक्सेस लिस्ट ने क्या किया, एक्सेस लिस्ट ने यहाँ पे एक बनाया कॉन टेबल। उस कॉन टेबल में क्या होता है, उस कॉन टेबल के अंदर एंट्री होती है सोर्स, डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, 4 मेन है। तो ASA ने एक एंट्री बना ली। अब इस यूजर ने क्या किया, इस यूजर ने यहां से जो चीज एक्सेस करी थी वो एक्सेस करी, इसका काम खत्म हो गया, इसने वो टूल या वेबसाइट या जो भी था उसको क्लोज कर दिया, लेकिन ASA उस कनेक्शन को मेंटेन करेगा कॉन टेबल के अंदर। अब फ्यूचर के अंदर जब ये यूजर यहां से सेम वेबसाइट या सेम व्हाट डू वी से टूल एक्सेस करने की जब कोशिश करेगा, तब ये ASA इन 3 फीचर्स या 4 प्रोसेस जो फेज हैं उन फेजेस के ऊपर नहीं जाएगा। सबसे पहले वो देखेगा कॉन टेबल, अगर उसको कॉन टेबल में एंट्री मिल गई कि हाँ जी इसने तो पहले एक्सेस कर रखा था और ये पास हो रखा है पहले से, तो यूजिंग दैट कॉन टेबल द ट्रैफिक विल बी थ्रोन आउट इंस्टेड ऑफ यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ASA। Now, who asked the question? So, this is called stateful inspection, यानी कि जो भी कनेक्शंस ASA के थ्रू पास हो रहे हैं उनको एक टेबल में मेंटेन करना फॉर फ्यूचर पर्पस, कि अगर फिर से कनेक्शन कोई वापस आए तो मेरी ASA के मैं रिसोर्सेज यूज नहीं करूं और मैं उस कनेक्शन को बाहर फेंक दूं। इसलिए तो ASA स्टेटफुल टेबल मेंटेन करता है।
तो ये स्टेटफुल इंस्पेक्शन, स्टेटफुल टेबल समझ में आई आपके? यस नो? अगर हमारे पास 2 फायरवॉल हों और जो प्राइमरी फायरवॉल फेल हो गया तो सेकेंडरी फायरवॉल पे क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं ये लोग आपस में, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें क्या ये स्टेट टेबल भी इंक्लूडेड है? हाँ जी बिल्कुल है। सो बेसिकली जब आप एक फेल ओवर कॉन्फ़िगर करते हैं, हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो आप प्रैक्टिकली 2 केबल यूज करते हैं। वन विच वी यूज फॉर जस्ट कीप अलाइव, उस पे सिर्फ हेलोज आएंगे कि हाँ जी मेरा पीयर जिंदा है या मर गया। और दूसरा मेरा होता है, वो होता है स्टेटफुल टेबल मेंटेन करने के लिए, उसका आदान प्रदान करने के लिए। तो 2 केबल यूज होती हैं। तो उसके अंदर अगर 2 यूज नहीं कर रहे हो तो एक से दोनों काम हो जाएंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 यूज करो, बट based on the architecture, based through industry standards, we use 2 cables। तो यहाँ पे जो दूसरा है, या एक ही मान लेते हैं, तो उस एक केबल के ऊपर कीप अलाइव्स भी चलेंगे और आपका सारा डेटा सिंक होगा, सारे कनेक्शन सिंक होंगे। तो आपकी स्टेटफुल जो टेबल है वो आपकी स्टैंड बाई फायरवॉल पे भी मेंटेन होगी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से कोई यूजर इस ASA1 के थ्रू, मैं एक ASA और बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बनेगी तो बहुत मुश्किल से बन गई। तो इस ASA1 के थ्रू ट्रैफिक पास हो रहा था, दिस इज 2। ASA1 के थ्रू मेरा ट्रैफिक पास हो रहा था, यूजर सब कुछ एक्सेस कर पा रहा था। सडनली पावर ऑफ हो गया या कुछ फेल और ट्रिगर हुआ, कुछ भी हुआ, ये ASA मेरा रीचेबल होना बंद हो गया। अब मेरा क्या हुआ साहब कि अब मेरा कनेक्शन बाहर जाएगा? हाँ जी बिल्कुल जाएगा। वो आपका कनेक्शन इस फायरवॉल के थ्रू बाहर चला जाएगा। यहाँ पे जो डेटा था स्टेटफुल इंस्पेक्शन का, स्टेट टेबल का, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा स्टेट टेबल का। तो अब अगर इस यूजर की एंट्री इस फायरवॉल पे थी कि इसने कभी वो टूल या एप्लीकेशन या वेब ब्राउजर या कुछ वेबसाइट कुछ एक्सेस करी थी, अगर वो यहाँ पे मेंटेन्ड थी तो वो यहाँ पे भी मेंटेन्ड है। फिर से जब कनेक्शन यहाँ पे आएगा तो पूरे फेजेस के थ्रू नहीं जाएगा, सिर्फ कौन लुकअप होगा, स्टेट लुकअप होगा और उसके बेसिस पे उसको बाहर भेज दिया जाएगा। दूसरी बात, जब फेल ओवर ट्रिगर होगा तो आपके कनेक्शंस बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे, आपके कनेक्शंस बाकायदा चलते रहेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो यहाँ से जो बंदा ब्राउज कर रहा था वो यहीं से चलता रहेगा, कोई ग्लिच नहीं होगा, नॉट अ सिंगल ड्रॉप। हाँ मे बी 1 या 2 ड्रॉप हो सकते हैं, बट data will not be dropped, your connections will not be dropped, you will not ask to reconnect. That's what I'm trying to say. Is this clear guys? और ये प्राइमरी और सेकेंडरी फायरवॉल का मॉडल सेम होना चाहिए? जो हम मॉडल सेम होना चाहिए, iOS भी सेम होना चाहिए। iOS अगर सेम नहीं है तो वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा कि peer does not have the identical OS, लेकिन फेल ओवर चलता रहेगा। सो रिकमेंडेड यूज iOS सेम, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक iOS से जब आप दूसरे iOS में जाते हैं तो कई सारी कमांड्स, कई सारी एक्सेस लिस्ट, कई सारी नेट अलग वे में चेंज हो जाती हैं। अलग वे में इन द सेंस कि उनका बिहेवियरल लुक चेंज हो जाता है। तो इसलिए वी रिकमेंड टू यूज सेम iOS एंड सेम फिजिकल एंड लॉजिकल operation should be same. I mean to say iOS and the chassis should be same while configuring failover. No, Raghuveer, it's not kind of active. This was active standby. This is active standby since we have started. अच्छा ठीक है, नहीं हम एक्टिव भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। So guys, this was active standby. मैं ये मिटा देता हूँ यार, अरे तो ये जो मैंने आपको बताया ये एक्टिव स्टैंड बाई था। एक्टिव स्टैंड बाई मतलब आपके पास 2 ASA हैं, एक ये है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों की नीचे की फिजिकल कनेक्टिविटी सेम है, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यानी कि ये 2 ASA कनेक्टेड हैं। जब मेरे यूजर्स का ट्रैफिक यहाँ से बाहर जा रहा था
ये मेरा डाउन हो गया और ये मेरा अप हो गया, तो ट्रैफिक मेरा यहाँ से पास होने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ साहब, यहाँ पे ये हुआ कि लोड बैलेंसिंग नहीं हुई, यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी हुई। हाई अवेलेबिलिटी मतलब कि मेरा एट ए टाइम एक ही डब्बा चालू रहेगा, ट्रैफिक एक ही डब्बा प्रोसेस करेगा। हाँ, इंफॉर्मेशन दोनों मेंटेन करेंगे, लेकिन ट्रैफिक मेरा एक ही डब्बे के थ्रू जाएगा। ट्रैफिक भेजने के लिए, ट्रैफिक प्रोसेसिंग के लिए मेरे दोनों डब्बे यूज नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड एक्टिव स्टैंड बाई फेल ओवर। अब अगर हम एक्टिव एक्टिव की बात करें तो उस एक्टिव एक्टिव में क्या होगा, अब उस एक्टिव एक्टिव को बताने के लिए मुझे एक और टॉपिक छेड़ना पड़ेगा, वो होता है फायरवॉल्स को बेसिकली आप दो चीजों में काट सकते हो, सिंगल कंटेक्स्ट और मल्टीपल कंटेक्स्ट। अब सिंगल कंटेक्स्ट मल्टीपल कंटेक्स्ट क्या होता है? सिंगल कंटेक्स्ट मल्टीपल कंटेक्स्ट। सिंगल कंटेक्स्ट मतलब एक फायरवॉल विल ट्रीट एज वन फायरवॉल, यानी कि मेरा एक फायरवॉल एक ही फायरवॉल के थ्रू काम करेगा। मल्टीपल कंटेक्स्ट मतलब मैं उस एक फायरवॉल को दो हिस्सों में बांट सकता हूं, जैसे कि वीआरएफ। वीआरएफ में क्या हुआ, वीआरएफ के थ्रू आपने मतलब राउटर को बांट लिया, काट लिया आपने राउटर को, दो नेटवर्क यूज कर सकते हो, दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हो। तो उसी तरह से यहाँ पे सिंगल कंटेक्स्ट और मल्टीपल कंटेक्स्ट होता है। अच्छा, जैसे एक सिस्टम पे, एक सर्वर पे हम दो वीएम डाल के अलग अलग दो मशीन चला सकते हैं, है ना। जैसे डेटा सेंटर वाले नेक्सस 7 के में हम लोग वीडीसी बना सकते हैं, अलग अलग एक फिजिकल बॉक्स में दो वर्चुअल बॉक्सेस या चार वर्चुअल बॉक्सेस कैसे बना सकते हैं, दैट इज exactly. So when we use the VDC in Nexus, so what VDC does, VDC divides that Nexus into several parts. In the same way, you can divide your firewall into several parts. So this is what we call as multiple context. So now to check that, what do we do? Now, if I want to check this firewall that this is in which mode, so I need to run a command show mode. So now this firewall is in single mode. अगर मैं इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी सारी कॉन्फ़िग हट जाएगी, डब्बा रिबूट होगा, रिबूट होके मल्टीपल कंटेक्स्ट में बन के आएगा। तो मैं रिबूट नहीं करूंगा और इसको मैं मल्टीपल में बनाऊंगा भी नहीं, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे दो फायरवॉल चाहिए मेरे नेटवर्क में, तो उसके बजाय मैं एक फायरवॉल लेके उसमें दो कंटेक्स्ट चला के काम कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं आप। थैंक यू। दो करूंगा क्योंकि कौन से सिनेरियो में कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी इसके? दो फायरवॉल नहीं, बेसिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट की बात नहीं है यहाँ पे रघुवीर जी। होता क्या है, आप फायरवॉल्स को काटते इसलिए हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये मेरे दो फायरवॉल हैं, पहले ये एक्टिव स्टैंड बाई का काम कर रहे थे। ये कोविड-19 का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पहले ये दोनों एक्टिव स्टैंड बाई में काम कर रहे थे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरे फॉर एग्जाम्पल 5000 यूजर कनेक्ट हो रहे थे, ये समझ जाना 5000 है। और ये एक्टिव स्टैंड बाई में थे, तो यहाँ पे भी 5000 कनेक्ट हो रहे थे और यहाँ पे भी 5000 कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि सेम है साहब, एक्टिव स्टैंड बाई है, डिफरेंट नहीं है। जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे दिखेगा। ये तो हाई अवेलेबिलिटी हुई कि अगर ये डब्बा डाउन हो गया तो सारा ट्रैफिक इधर से चलेगा। अब मैं ये चाहता हूं कि 5000 के बजाय मैं कनेक्ट करवाऊं यूजर 10,000। तो 10,000 यूजर कनेक्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूं, इन दोनों डब्बों को तोड़ लेता हूं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों डब्बों को तोड़ लिया। यहाँ पे ये हो गई फायरवॉल 1 और अरे ये लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये हो गई फायरवॉल 2। तो अब मैंने जब इन दोनों डब्बों को तोड़ा तो यहाँ पे अब एक्चुअल में आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। लोड बैलेंसिंग आई मीन टू से कि ये फायरवॉल 1, ये फायरवॉल 2 और यहाँ पे ये फायरवॉल 2 और ये फायरवॉल 1। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों डब्बों को काट लिया और दोनों डब्बों को मैंने काट के उन पे नाम असाइन कर दिया। फायरवॉल 1 एक
एक कॉन्टेक्स्ट और फायरवॉल 2 दूसरा कॉन्टेक्स्ट। सेम वे दूसरे फायरवॉल में मैंने लिख दिया फायरवॉल 2 1 कॉन्टेक्स्ट एंड फायरवॉल 1 1 कॉन्टेक्स्ट। तो अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल ये जो फायरवॉल 1 वाला कॉन्टेक्स्ट था इसके ऊपर मेरे यूजर्स कनेक्ट हो रहे थे, तो अब वो यूजर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद में मेरे फॉर एग्जांपल 3000 यूजर्स यहाँ पे कनेक्ट हो गए। और अब होगा क्या कि वो जो यूजर्स यहाँ पे आएंगे, तो अब यहाँ पे जब यूजर मेरा टर्मिनेट हुआ, तो अब इस फायरवॉल का अब काम ये है कि इस फायरवॉल पे जो ट्रैफिक आया है उसको ग्रुप्स में डिफरेंशिएट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, बांटे उस ट्रैफिक को। वो एक राउंड रॉबिन का मैकेनिज्म चलता है कि फॉर एग्जांपल इस फायरवॉल पे आए 10 यूजर कनेक्ट हो गए, तो अब क्या होगा 10 यूजर जब मेरे फायरवॉल 1, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये दो ग्रुप हैं फायरवॉल 1 और फायरवॉल 1, दिस इज वन ग्रुप। तो यूजर्स मेरे फायरवॉल 1 ग्रुप पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो फायरवॉल 1 पे मेरे 10 यूजर्स आए और कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। अब ये फायरवॉल पे जब 11वां कनेक्शन आएगा, तो ये फायरवॉल उसको क्या करेगा, उस 11वें कनेक्शन को ये यहाँ पे भेजेगा, 12वें को भी यहीं भेजेगा, 13 को भी यहीं भेजेगा, 14 भी यहीं, 15 भी यही, 16 भी यही, अंटिल 20। तो क्या हुआ, 10 यहाँ पे कनेक्ट हो गए, 10 यहाँ पे कनेक्ट हो गए। तो ये मेरी अब हो गई लोड बैलेंसिंग, 10 इस पे टोटल 20। तो अब मैं 5 की जगह 10,000 कनेक्ट कर सकता हूँ साहब। रघुवीर, दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। अच्छा, अगर इसमें एक ये वाला फायरवॉल है जो फायरवॉल 2 वो फेल होता है, तो फिर 10,000 इस पे ब्लास्ट होंगे ना कनेक्शन, तो इसकी कैपेसिटी फिर, तो ये तो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है, ये काम भी करता है काम नहीं भी करता है, उस मामला है। मतलब अगर मेरा ये फायरवॉल ब्रेक डाउन हो गया पूरा का पूरा, तो ये मेरा फायरवॉल 10,000 कनेक्शन झेल नहीं सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 5,000 थी। वो तो पूरा सिनेरियो, तो ये क्या है, ये लिमिटेशन है इसकी। तो आप डिवाइस ही ऐसा लेके आओ जिसकी कैपेसिटी 10,000 हो, दोनों डिवाइसेस के 10,000 कैपेसिटी हो, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि 5 इस पे गिरेंगे, 5 इस पे गिरेंगे, और अगर एक चासी फेल हो गया तो एक डिवाइस हमारा है जो 10,000 झेल सकता है। तो इसीलिए जैसा कि अभी पहले डिस्कस हुआ था, जब आप फेल ओवर बनाते हैं तो चासी शुड बी सेम। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था 5,000 यूजर वाला, कि अगर वही है, आजकल लोगों की रिक्वायरमेंट वही आ रही है कि ये जो कोरोना वाला कोविड आउटब्रेक है उसमें क्या हो रहा है कि पहले साहब हमारे 5,000 चल रहे थे, हमारा एक्टिव स्टैंड बाई था, अब हमको 10,000 सर्व करवाने थे, डब्बे की कैपेसिटी 5,000 है, 10,000 सर्व कैसे करवाओगे, डब्बे को आप काटोगे, काटने के बाद में 5 यहाँ गिरेंगे, 5 यहाँ गिरेंगे, और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई फेल हो गया तो ये डब्बा 10,000 झेल नहीं सकता, एंड दैट इज आउटेज। ओके सर। रघुवीर, दिस इज क्लियर? ठीक है सर। तो फिर ये 5,000 तो लेगा ही ना, ऐसा तो नहीं है 10,000 का लोड मिल गया तो मेरा सेकंड भी नोट डाउन हो गया? नहीं 5,000 झेलेगा, 5 के बाद में जो 11वां आएगा उसको ड्रॉप करता जाएगा, ये 5,000 एक कनेक्शन से ड्रॉप करेगा, ये पैकेट्स ड्रॉप होंगे, ये से विल स्टॉप एक्सेप्टिंग द पैकेट्स, शॉर्ट एंड स्वीट, ए से विल स्टॉप एक्सेप्टिंग द पैकेट्स, वहीं पे आएंगे ड्रॉप कर देगा, जिस इंटरफेस पे आ रहे हैं उसी इंटरफेस पे ड्रॉप कर देगा। तो सर फिर एक्टिव स्टैंड बाई और लोड बैलेंसिंग में ज्यादा डिफरेंस हुआ नहीं ना? लोड बैलेंसिंग में भी परफॉर्मेंस तो वही हुआ आधा आधा, और एक्टिव स्टैंड बाई में एक स्टैंड बाई रहा, एक ने पूरा ट्रैफिक प्रोसेस किया। तो एक्टिव स्टैंड बाई में क्या होगा, एक्टिव स्टैंड बाई में आपकी लोड बैलेंसिंग कहाँ हो रही है साहब? रही है ना, लोड बैलेंसिंग नहीं हो रही है। लेकिन ट्रैफिक तो जैसे 10,000 है, वो पूरा ट्रैफिक एक फायरवॉल ने किया, दूसरा स्टैंड बाई पे है। हाँ जी, लोड बैलेंसिंग में आधा आधा हुआ है दोनों से, आधा आधा हुआ है, बिल्कुल हुआ है आधा आधा। लोड तो बेनिफिशियरी कैसे हुआ सर फिर? तो बेनिफिशियरी इस वे में हुआ ना कि अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये क्या है, ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है। अगर मैं एग्जांपल करूं कि इस फायरवॉल के पीछे ये जो फायरवॉल, फॉर एग्जांपल इसको आप एक कंसिडर करो, अभी ये फायरवॉल 1 है, फायरवॉल 2 को आप भूल जाओ, तो इसके पीछे जो लैन यूजर्स हैं वो 10,000 है।
और VPN का भी कुछ माल मसाला आ रहा है इस पे, 5000 VPN के यूजर्स आ रहे हैं। तो और फॉर एग्जांपल इस फायरवॉल की कैपेसिटी के बाहर चला गया ये, तो अब इस कैपेसिटी को, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना ट्रैफिक। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको बेसिकली I'll connect my charger. डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक्टिव बनाना पड़ेगा। एक्टिव स्टैंड बाई के अंदर आप ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नहीं, उसमें एक फायदा ये भी है ना कि आप जब दोनों फायरवॉल यूज कर रहे हो एक्टिव सिनेरियो में, तो आपके जो बाकी रिसोर्सेज है नेटवर्क के वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हैं ना। एक लेग आपका खाली नहीं पड़ा है, बैंडविड्थ उधर जो बेकार पड़ी थी वो भी तो यूटिलाइज हो रही है। और फिर आपका सारा जो परफॉर्मेंस डिग्रेड भी होता है ना, जैसे जैसे सिस्टम जो है वो अपना स्केल लिमिट्स तक पहुंचता है, तो इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग अ लिटिल स्लो। सो इफ द ट्रैफिक विल बी डिवाइडेड, इफ द लोड विल बी शेयर्ड, then your devices will keep performing well. So these may be some more reasons why we do it. Okay sir. So the only limitation which we have with active is that if one chassis is failing, then you will be under a single point of failure, but your traffic will be being served, but you will not have any outage, but you will be having single point of failure. In case of active and standby, you won't have that case. If one chassis got failed, yeah, you are live through another chassis. See. Okay, so in interest of time, let's move to the next question, sir. The other question was from Anup. How could we access by GUI? And one more question from Deepak. Brief about firewall architecture, 2-tier and multi-tier. Okay, cool. So now let's move to the next question, which is GUI. So to access GUI, let me launch the ASDM. Acha, before starting that, all right. So I'm accessing my firewall using this interface. It has an IP of 10.106.59.90. Now, to access this chassis using GUI, I need a software called ASDM, which I already have in my box. This is the ASDM. Now, to do, okay, let's discuss two things real quick. Again, it got disconnected. Guys, let me reconnect. Someone else is using my IP. Just a second, guys. With ASDM, the GUI stuff, let's talk two things real quick. One about SSH and second one about, what do we say, HTTP. HTTP, I mean to say how you will access the GUI of the chassis using HTTP protocol. So we'll talk two things about that. All right, so I do have SSH enabled here. Now to enable SSH, what you need to do, साहब आपके राउटर के अंदर तो लाइन VTY होता था, यहाँ पे कोई लाइन VTY नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से SSH इनेबल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको इस टेस्ट इंटरफेस पे अगर SSH इनेबल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, SSH इंटरफेस का नाम, सॉरी, SSH देन नेटवर्क क्वेश्चन मार्क यूज करिए, हेल्पफुल रहेगा। 00, मैं चाहता हूं कि कोई भी इस इंटरफेस पे आके SSH यूज करे। अब मुझे इंटरफेस का नाम डालना है जी साहब, मैं चाहता हूं टेस्ट के ऊपर कोई भी आए उसको एक्सेस मिल जाए, तो मैंने टेस्ट लिख दिया। So this 00 is like 0000 any 0000. Okay. any so यहाँ पे अगर आप चाहते हैं अंगुलियों को दुख देना तो आप 40 लिखिए और फिर टेस्ट लिखिए।
या फिर 2 0 लिख के टेस्ट लिखिए, मेक नो सेंस। सो इस तरह से मैं SSH इस पे इनेबल कर सकता हूं। ये मेरा टेस्ट पे इनेबल कर दिया है मैंने SSH, ठीक है जी। सेम वे मुझे ASDM इनेबल करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल इनेबल करना पड़ेगा, तो वो भी मैं इसी तरह से कर दूंगा, HTTP 00 टेस्ट। हाँ जी, कि टेस्ट इंटरफेस के ऊपर कोई भी HTTP की रिक्वेस्ट आए, यानी कि सिर्फ टेस्ट इंटरफेस के लिए, मैंने गलत बोला, टेस्ट इंटरफेस के लिए, टेस्ट इंटरफेस के लिए, यानी कि जो इस टेस्ट इंटरफेस पे IP असाइंड है उसके लिए, 1.10 के लिए, तो अलाउ कर देना। हाँ, अगर टेस्ट इंटरफेस के थ्रू दो चीजें होती है, टू एंड थ्रू। टू मीन्स टू द चैसी, आई मीन टू से टू मीन्स बॉक्स के लिए, यानी कि अगर बॉक्स के ऊपर कोई ट्रैफिक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टू द चैसी। एंड थ्रू, फॉर एग्जाम्पल पेंट कहाँ है, हाँ, यहां से ये यूजर जब इंटरनेट यूज कर रहा था, दैट इज कॉल्ड थ्रू ट्रैफिक, वो फायरवॉल के थ्रू जा रहा है। सो टू एंड थ्रू, टू थिंग्स। तो उसी तरह से HTTP एंड SSH मैंने दोनों इनेबल कर लिए। SSH इनेबल हो गया, HTTP इनेबल हो गया। अब साहब मेरे को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर पे जाइए, ब्राउजर पे जाके लिखिए 10.106.59.90, this is the firewall IP, hit enter. It will give you a connection error because अब पता नहीं आप लोगों ने सोचा, कभी नहीं सोचा, ये एरर क्यों आती है, बात कर लेते हैं। ये एरर इसलिए आती है, ये जो मेरा क्रोम है, ये क्रोम जो सर्टिफिकेट मेरा ASA के पास है उसको ट्रस्ट नहीं करता है। मैं SSL के बारे में बात नहीं करूंगा, जस्ट ओवरव्यू आप पढ़ना, अब सर्टिफिकेट के बारे में बात नहीं करूंगा। टेन 106.59.90 क्रोम के थ्रू नहीं चल रहा था। ओहो। सो गाइज, यहाँ पे मैंने इस पे VPN चला रखा है, तो अब इसके बारे में भी बात ही कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो क्या रहा है, मैं एक्सेस कर रहा हूं इस इंटरफेस के थ्रू। इस इंटरफेस का IP है 10.106.59.90। अब इस इंटरफेस के ऊपर मैंने कुछ VPN चला रखा है, तो अब जब दो क्वेरीज, यानी कि कोई मेरा VPN का ट्रैफिक अगर आएगा वो इसी इंटरफेस पे आएगा, और ASDM का ट्रैफिक भी इसी इंटरफेस पे आएगा। तो यानी कि दो चीजें हो गई, ASDM का ट्रैफिक भी पोर्ट 443 पे आया और मेरा VPN का ट्रैफिक भी पोर्ट 443 पे आया। तो दोनों में चासी कंफ्यूज हो गया कि ट्रैफिक सर्व कौन सा करना है। तो अगर मुझे ASDM एक्सेस करना है तो यहाँ पे मुझे आगे लगना पड़ेगा /admin, और ये क्रोम के थ्रू नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, यहाँ से चला लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब मैंने IP हिट किया तो ये मेरे VPN के लिए क्रेडेंशियल्स पूछ लिए इसने कि हाँ जी यूजर नेम पासवर्ड डालो, .90/admin। ये मेरा /admin लिखते ही ASDM का पोर्टल खुल गया। यहाँ से आप ASDM डाउनलोड कर लीजिए, यूजर नेम पासवर्ड डालने पड़ेंगे जो 4 डिवाइस के हैं, और ये एक फाइल डाउनलोड होगी, उस फाइल को आप इंस्टॉल कर लेना। अब ये डाउनलोडिंग तो खैर मैं रोक देता हूँ क्योंकि मेरे डिवाइस में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये इसको इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ से
ASDM लॉन्च कर सकते हैं। ये लॉन्च हो गया, मेरे डिवाइस का IP मैंने डाल लिया और यहाँ पे मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिए, एंटर हिट किया। नाउ दिस विल शो मी द GUI ऑफ फायरवॉल। People feel comfortable to use ASDM. You also give it a try. I'm much of a CLI guy. All right, so we have IP wrong. We have 71. Let's launch it again. 10.106.59.90. Username, password. It is loading. All right. So this is the GUI of firewall. ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, डिवाइस का डैशबोर्ड क्या है, यूटिलाइजेशन कितना है, वगैरह 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 वगैरह, इंटरफेस के IP वगैरह क्या हैं और क्या स्पीड दे रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टैब जो है वो काम आती है आपको इस डिवाइस पे क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। अगर इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे आओ, जोन बनानी है तो यहाँ पे आओ, राउटिंग करनी है तो यहाँ पे आओ, ये प्रोटोकॉल अगर रन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यानी कि वो सारे काम जो आप GUI के थ्रू करते हैं वो सारे काम आप CLI के थ्रू करते हैं, वो सारे काम GUI के थ्रू भी आप कर सकते हैं। सो ये डिवाइस सेटअप है। डिवाइस सेटअप मतलब आप डिवाइस के लिए क्या क्या कर रहे हो। फायरवॉल यानी कि एक्सेस रूल, नेट वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे आप डिफाइन करोगे। यहाँ से आप रिमोट एक्सेस VPN बना सकते हो, बहुत आसान है, क्लिक करो, विजार्ड है, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, गो हेड, चल जाएगा। साइट टू साइट VPN आप यहाँ से बना सकते हो। और ये डिवाइस मैनेजमेंट है। डिवाइस मैनेजमेंट यानी कि भैया SSH कौन लेगा, टेलनेट कौन लेगा, HTTP कौन लेगा, वो चीजें आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो is this okay till now? Are we on the same page, guys? Respond so I can move forward. All right, yes. Okay. All right, cool. देख सकते हैं क्या फायरवॉल में कौन सा यूजर क्या एक्सेस कर रहा है, कुछ डेटा वगैरह? वो देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। तो वो आप देखने के लिए आपको चाहिए एनालाइजर। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे FTD की, तो FTD की अगर हम बात करते हैं, FTD नेक्स्ट लेवल, ASA का बड़ा भाई। पहले ASA था, अब FTD है। तो ASA में क्या होता है, ASA के अंदर आपको वो सारी चीजें डालनी पड़ती हैं अलग अलग तरीके से। FTD में सारी चीजें इनबिल्ट आती हैं। तो FTD का जो GUI है FMC, यहाँ पे ये जो GUI है ASDM, इसमें इतने फीचर्स नहीं है जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन FTD using FMC has multiple features which are fulfilling, I think, almost all the requirements. So like your question, if I want to see an IP address, what he is trying to access, yes, that you can see in ASDM and in CLI of ASA, and you can see that in FTD and FMC as well, but with a more clear view. Okay sir, one more question है। Yep. लाइसेंसिंग का क्या इसमें कुछ डिफॉल्ट डिफरेंट लाइसेंसेस होते हैं क्या डिफरेंट कस्टमर्स के लिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से? वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या यूज करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके ऊपर कुछ नहीं है अभी। यहाँ पे 2 सिक्योरिटी कंटेस्ट डाल सकता हूँ, 25 VLAN बना सकता हूँ, फेल ओवर एक्टिव कर सकता हूँ। फेल ओवर का भी लाइसेंस चाहिए होता है जी, ऐसे फ्री में नहीं होगा।
3DES और DES का लाइसेंस है, AnyConnect का लाइसेंस है, और मोर क्लियर व्यू के लिए आप यहाँ से देख सकते हो शो लाइसेंस समरी, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके VPN के लिए कौन कौन से लाइसेंस इनेबल्ड हैं। शो वर्जन के अंदर आपको क्लियर व्यू दिखेगा। पूरे फायरवॉल के लिए अगर आपको स्पेसिफिक VPN के लिए देखना है तो आप शो ये वाली कमांड यूज कर सकते हैं, शो VPN सेशन DB लाइसेंस समरी। तो यहाँ पे लाइसेंस ये दिखा देगा। बाय डिफॉल्ट जो लाइसेंस आते हैं वो ये हैं, शो वर्जन में जो दिख रहे हैं ये वाले एसेंशियल जो। हाँ जी। ओके सर। Alright. So now guys, can we move forward with basic VPN? Yep. Alright, cool. So let's get started. First, I'll try to write it down few things here, like what type of VPN do we have here? For example, okay, so VPN S2S, which means site to site. Second one, remote access. Third one is kind of clientless. Clientless यानी कि जी यूजर, वो खैर मैं बाद में समझा दूंगा एक। DM VPN, Get VPN। अब इनके अंदर वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स इन द सेंस, अब हम एक के बारे में बात करते हैं। साइट टू साइट मतलब आपकी एक साइट है, लेट मी रब दिस थिंग, ओके, ये एक साइट 1 है, ये एक साइट 2 है। तो अब आप चाहते हैं इस साइट के पीछे जो यूजर्स थे वो इस साइट के पीछे वाले यूजर से बातचीत कर पाए, बीच में ये इंटरनेट पड़ा है और इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, या तो आप पब्लिक कनेक्टिविटी दे दो। पब्लिक कनेक्टिविटी इन द सेंस कि हाँ जी आपने पब्लिक आईपीज का पूल खरीद रखा है और स्टैटिक नेट करते जाओ और पब्लिक आईपीज के थ्रू कनेक्टिविटी दे दो। अब क्या वो सिक्योर है? नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, बिल्कुल सिक्योर नहीं है। अगर यूजर नेम पासवर्ड पता है तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, और यूजर नेम पासवर्ड ब्रेक करने की भी कोशिश की जा सकती है, अटैक भी हो सकता है। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, उस केस के अंदर हम VPN यूज कर लेते हैं। VPN बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यूजिंग सम अदर मीडियम, over that medium try to create your own PAN, personal area network, प्राइवेट बना लो आप उस टनल उस दूसरे मीडियम पे। दूसरा मीडियम यानी कि ISP। यूजिंग ISP's medium you create a private tunnel over that ISP which will protect your network from attacks. So that what we use. So since we are talking about site to site here, so now our requirement was to secure the connection between site A, site 1 and site 2. So now here what we can build, here I do have a firewall, here I do have a firewall. So here what we are building, we can build a site to site tunnel. Now to build that site to site tunnel, we need so many things. So basically, and even that site to site tunnel can be built over a couple of things. For example, अब साइट टू साइट टनल काफी सारे प्रोटोकॉल्स के थ्रू बनाई जा सकती है। लाइक एक है IKE वर्जन 1, एक है IKE वर्जन 2, और एक तीसरी चीज होती है सर्टिफिकेट बेस्ड या फिर PSK बेस्ड। PSK मतलब प्री शेयर्ड की। तो मैं साइट टू साइट IKE v1, IKE v2 इन दो प्रोटोकॉल्स के बारे में थ्रू बना सकता हूं, और using these two protocols I can use any mechanism of configuring a site to site tunnel using certificate as well or using PSK as well.
So this is site to site. So I was planning to configure this site to site, but since we are running out of time, I won't be able to do that. That was my agenda. I didn't came with basic ASA and other stuff. I came with VPN. But yeah, since we are not able to do that, we'll discuss these things as well, theoretically, not practically, theoretically. So this is site to site. So as I've told, you can configure this site to site using two protocols, which is IKV1, IKV2. Now you can use any authentication method using certificate or using pre-shared key as well. So now anyone have any questions in this site to site? In theory. So we need either V1, V2, yeah, V1 or V2, and we need certificate based or PSK, right? Yeah, either of them you can use. So now if I talk about PSK, then basically when the exchange happens, all right, today I think so we'll only discuss this site to site. So let me rub these things. So when I talk about these two protocols and these two authentication methods, so what it happens when I'm using PSK, for example, on site 1, I'm using PSK Cisco. So this PSK should match on site 2 as well, which should be Cisco. This is PSK, simple and sweet. So your PSK should match, or else your tunnel will not come up. Now, if we talk about certificate based, then basically, for example, on your site 1, you have a certificate from root. This is root. So if you have a certificate from your root, for example, for your site 1, and the certificate is signed for s1.cisco.com, and the certificate was signed by, for example, Verizon. On S2, you have a certificate called s2.fortinet.com. This is different vendor, for example, s2.fortinet.com. If now the requirement, भाई ये जरूरी नहीं है कि जो रूट का सर्टिफिकेट, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये आप ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से यहाँ टनल बना रहे हो तो आप पीएसके यूज कर रहे हो, तो उस पीएसके में तो आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ जो मैंने डाली है वो भी वही होनी चाहिए, तभी टनल बनेगी, नहीं तो टनल नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं सर्टिफिकेट बेस्ड की बात कर रहा हूँ, तो सर्टिफिकेट बेस्ड में क्या होता है, मैंने कहीं गया, मैं रूट के पास, मैंने रूट को बोला कि हाँ जी मेरा एक सर्टिफिकेट साइन करके दे दो। उसने मुझे पूछा कि हाँ किस नाम से चाहिए, मैंने कहा साहब मेरा डोमेन है सिस्को और मेरे डिवाइस का नाम है S1, तो मेरा FQDN क्या बन गया, s1.cisco.com। उसने क्या किया, सील और साइन लगा के दे दिया, हाँ जी ये आपका सर्टिफिकेट है s1.cisco.com, जाइए। मैं उस सर्टिफिकेट को लेके आया, मैंने उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। उसी तरीके से S2 किसी सीए के पास गया, उस सीए को इसने जाके बोला, सीए चार्टेड अकाउंट वाला नहीं, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी। तो S2 किसी दूसरे सीए के पास गया, उसने उस सीए को जाके बोला कि हाँ जी मेरे को भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। सीए ने सेम क्वेश्चन किया कि तुम्हारा डोमेन नेम बताओ, तो उसने कहा डोमेन नेम तो fortinet.com है और मेरे डिवाइस का नाम S2 है, तो उसने भी उसको सील और साइन लगा के दे दिया, हाँ जी ये लीजिए s2.fortinet.com, वो भी यहाँ लेके आ गया। अब साहब जब हम दोनों यूजिंग सर्टिफिकेट मेथड, ऑथेंटिकेशन मेथड, हम टनल बनाना चाहते हैं, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि जब मैं इसके साथ टनल बनाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भाई पीएसके के अंदर क्या होता है, पीएसके एक्सचेंज होती है। जब दोनों डिवाइसेस आपस में टनल बनाते हैं तो पीएसके एक्सचेंज होती है, तो जब वो पीएसके एक्सचेंज होती है तो उसमें क्या होता है, वो पीएसके हैश करके भेजी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिंपल टेक्स्ट में जाएगी, हैश होके जाती है। तो यहाँ से S1 ने उसको हैश किया, S2 के पास वो पहुंची, S2 ने डिक्रिप्ट किया, हैश को देखा, खुद वाली का हैश किया, हैश मैच हो गया, हाँ जी पीएसके सेम है। लेकिन सर्टिफिकेट में क्या होता है, सर्टिफिकेट में यहाँ से सर्टिफिकेट जाएगा,
तो यहाँ पे तो cisco.com है, यहाँ पे fortinet.com है, मैच ही नहीं हो रहा, काम कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें ये चाहिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आप सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन वाला मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट सेम सीए से होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी है कि हाँ, दूसरी बात, जब आप सर्टिफिकेट साइन करवा के लेके आते हैं तो सीए आपको दो चीजें देता है। एक तो देता है आपका आईडी सर्टिफिकेट। आईडी सर्टिफिकेट क्या हो गया? s2.fortinet.com, this is ID cert. Now CA will give me one more thing, that is called root certificate. भाई रूट सर्टिफिकेट मुझे क्यों चाहिए? भाई कोई तो ट्रस्ट करे इस सर्टिफिकेट को, इसलिए मुझे रूट सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो सीए मुझे देगा रूट सर्टिफिकेट कि जिस बंदे ने आईडी सर्ट साइन किया है उसका रूट सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया। रूट सर्टिफिकेट सबके पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी बैंक की वेबसाइट की बात करें तो भैया आज HDFC बैंक का सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। HDFC नेट बैंकिंग की वेबसाइट पे जाऊंगा, वहां से एक्सपोर्ट कर लूंगा, फाइल में सर्टिफिकेट मेरे पास आ जाएगा। तो वो तो रूट सर्टिफिकेट है, उसका मैं क्या करूंगा? वो तो कोई मतलब का नहीं है, लेकिन वो चाहिए होता है। सो रूट सर्टिफिकेट इज पब्लिक एंड यूजेबल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे मुझे वो रूट सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से जो सर्टिफिकेट साइन किया था, ये साइन किया था GoDaddy ने, और यहाँ वाला सर्टिफिकेट साइन किया था वेरिजन ने। तो यहाँ पे मेरे पास आईडी सर्ट क्या बन के आया? s1.cisco.com, और यहाँ पे जो आईडी बन के आया वो बन के आया s2.fortinet.com। और यहाँ वाला सर्टिफिकेट साइन किया है GoDaddy ने, और यहाँ वाला सर्टिफिकेट साइन किया है वेरिजन ने। अब अगर मैं टनल बनाना चाहता हूं तो मुझे GoDaddy का रूट सर्टिफिकेट यहाँ पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब नेगोशिएशन होगा तो S2 अपना सर्टिफिकेट भेजेगा और मैं उस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास GoDaddy का रूट सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो मुझे उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए S2 वाले सीए का सर्टिफिकेट यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा S1 का जो सीए है, जो कि है वेरिजन, उसका भी रूट सीए मुझे यहाँ पे लाके डालना पड़ेगा, तब जाके ऑथेंटिकेशन मेरा पूरा होगा। सो आर वी क्लियर विथ PSK एंड ऑथेंटिकेशन? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको VPN का आइडिया होना चाहिए, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने जो समझाया, जो सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन और ये PSK ऑथेंटिकेशन, ये समझ में आया या नहीं आया? मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि साइड टू साइड टनल बनाने आती है नहीं आती है, VPN आता है नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है साहब। ये जो बताया है ये समझ में आया क्या? क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी अगर इन फ्यूचर हम कभी टनल बनाएंगे तो। कमेंट्स प्लीज। ऑलराइट, कूल, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सो आज हम कन्फिग तो कर नहीं सकते, since we are out of time, it's already 6:52. If you guys have any other questions, you guys can shoot the questions, I'm happy to answer. We'll not be discussing any new topic now. अगर हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बता देता हूं हम क्या करेंगे। हम एक बेसिक साइट टू साइट VPN बनाएंगे, 2 ASA या एक ASA एक राउटर के बीच में, और उस साइट टू साइट VPN को बनाने के बाद में जो मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं कि टनल मेरी बन कैसे रही है, उन मैसेजेस के बारे में बताऊंगा। एक एक मैसेज चाहे तो 1 घंटा ले सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे में। सो आइक V1 के अंदर 6 मैसेज होते हैं, उनको बोलते हैं MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6। उसी तरीके से आइक V2 के अंदर ऐसे 6 मैसेज नहीं होते हैं। आइक V2 के अंदर 2-3 चीजें ही होती हैं, आइक init and आइक auth and आइक create child। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे इन मैसेजेस के बारे में और साइट टू साइट टनल के बारे में।
वी कैन फिल्टर ब्लॉक्ड वेब लिंक लाइक मिराकी। हाँ जी बिल्कुल अनूप जी, आप ये कर सकते हैं इसके अंदर, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, FQDN एक्सेस लिस्ट के थ्रू आप कर सकते हो, क्योंकि ASA के अंदर बाय डिफॉल्ट वेब फिल्टर वाला मॉड्यूल इंस्टॉल्ड नहीं होता है। तो या तो FTD लेके आओ या फिर FQDN एक्सेस लिस्ट के थ्रू ट्राई करो ब्लॉक करने की, हो जाता है। एनी अदर क्वेश्चंस? Okay, so no questions. One question was there from someone regarding to that 2-tier, 3-tier or multi-tier, whatever architecture of firewall. Okay. I missed that. All right. Quickly, एक बार अगर उस पे आप. Yeah. We'll cover that. All right. Okay. Where is paint? Yeah, here's the paint. Okay. So I had a question from, I don't know whom. Let me find the name. Deepak. Okay. Deepak. So now he was asking about 2-tier and 3-tier architecture. So Deepak, that basically depends on, what do we say, the requirement I mean to say, फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं भूल गया था जब लोड बैलेंसिंग बता रहा था, एक तो मैंने बताई एक्टिव एक्टिव, एक बताई एक्टिव स्टैंड बाई, एक तीसरी चीज और होती है, उसको बोलते हैं क्लस्टर। उस क्लस्टर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फायरवॉल है, ये दूसरी फायरवॉल है, ये तीसरी फायरवॉल है। सो इन तीनों फायरवॉलों को, I hope Deepak asked this kind of question, or else he wanted to ask some scenario based architecture question. Let me go. Okay, brief about firewall architecture, 2-tier and multi-tier. Okay, yeah, this is the only one. So यहाँ पे क्या होता है, based on your network requirement and quantity of users, you can configure active standby, active, or on top of that you can configure a cluster. So अब इस क्लस्टर में क्या होता है साहब, इस क्लस्टर के अंदर क्या होता है, आप एक क्लस्टर के अंदर इन तीनों डिवाइसेस को डाल दोगे। अब ये तीनों डिवाइसेस एक की तरह ही काम करने लग जाएंगे, यानी कि जब मैंने फायरवॉल 1, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो जब ये तीनों हाँ जी बोलिए। अगर फायरवॉल 1 पे पैकेट एंटर होगा फ्रॉम लेंथ सेगमेंट, तो वेन सेगमेंट, ये फायरवॉल 3 पे उस पैकेट का सोर्स फायरवॉल 2 का होना चाहिए ना? नहीं, ये आप किस वे में किस वे में बात कर रहे हैं? जैसे पैकेट इस फर्स्ट फायरवॉल से एंटर हुआ, देन बाहर सेकंड के लिए सेकंड पे ट्रांसफर हुआ, तो इस मतलब ईच फायरवॉल पे जब पैकेट दूसरी फायरवॉल पे ट्रांसफर किया जाएगा तो सोर्स चेंज होगा ना? हाँ जी बिल्कुल। नहीं, आपने जो आर्किटेक्चर वाला सवाल पूछा था वो क्या इस वे में था, या जो आप अभी पूछना चाह रहे हैं वो है? नहीं, इस वे में आप जो समझा रहे हैं वो बताओ सर आगे। मैं तो जस्ट अभी मेरे आया दिमाग में तो पूछा। अच्छा, तो ये जो आर्किटेक्चर वाला सवाल था उसमें क्या है कि भाई टू वे या 3 वे, अब ये 2-3 चीजों में आ जाता है। 2-3 चीजों में मतलब अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर वो ऐसे भी आ जाता है कि हाँ जी मैं मेरे वैन लेग पे क्या लगाऊंगा, लैन लेग पे क्या लगाऊंगा, सर्वर फार्म में क्या लगाऊंगा, तो ये भी एक आर्किटेक्चर ही है। तो यहाँ पे अगर मल्टी लेवल आर्किटेक्चर यूज करना है तो हाँ जी साहब मैंने वैन लेग पे FTD लगा दी, लैन लेग में फोर्टिनेट लगा दिया, सर्वर फार्म लेग में मैंने जूनिपर लगा दिया, तो ये हो गया मल्टी आर्किटेक्चर। लेकिन ये जो फेलोवर वाला जो आर्किटेक्चर आपने पूछा है, इसमें क्या होता है, एक्टिव स्टैंड बाई, एक्टिव स्टैंड बाई में लोड बैलेंसिंग नहीं होगी, एक्टिव में लोड बैलेंसिंग होगी, बट अगर एक चासी फेल हो गया तो यू विल बी अंडर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होता है, सिंस यू हैव 3 फायरवॉल्स, आपके पास 3 फायरवॉल हैं, जब आपने इन तीनों फायरवॉल को एक क्लस्टर में डाला तो अब ये तीनों फायरवॉल इंडिविजुअली काम नहीं करेंगी, दीज तीनों फायरवॉल विल वर्क एज ए क्लस्टर। अब तीनों फायरवॉल्स पे IP एक ही होगा। अब यहाँ पे भी लोड बैलेंसिंग होगी, जब पैकेट यहाँ पे आएगा, फॉर एग्जांपल एक पैकेट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में राउंड रॉबिन मेथड वही चलेगा, शेयरिंग वाला जो मैंने पहले बताया था, फिर बता देता हूँ। तो यहाँ पे 10 यूजर कनेक्टेड हो गए, अब दूसरे 10 यूजर साहब यहाँ कनेक्ट होंगे,
तीसरे 10 यूजर यहाँ कनेक्ट होंगे, फिर 5 यूजर यहाँ कनेक्ट होंगे, उसी तरह से फिर 5 यहाँ, फिर 5 यहाँ, तो लोड बैलेंसिंग चलती रहेगी। ये हो गया क्लस्टर, एक तीसरा मेथड लोड बैलेंसिंग का। अगर यहाँ पे एक चासी फेल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 चासी फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और क्लस्टर के अंदर आप रिप्लेस भी कर सकते हो चासी। लाओ घुसा दो, क्लस्टर का आईपी डाल दो, कॉन्फ़िग सिंक हो जाएगी। दीपक, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. Clear. Cool then. Any more questions, guys? Guys, you have to ask questions. You cannot sit like camels. एग्जांपल दो ना क्लस्टरिंग का इसमें। बलराम जी, एग्जांपल ही तो था। ये मल्टी मोड क्लस्टर है ना? नहीं, एग्जांपल तो जैसे ये सिनेरियो मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे कमांड लाइन बता के। कमांड लाइन प्रैक्टिस में करवा देता। मेरे पास अभी 3 फायरवॉल्स हैं नहीं, एक ही फायरवॉल है मेरे पास। that will not be possible. अभी टाइम भी नहीं है, और हमारा टनल के क्वेश्चन है सर, कुछ एज यूजुअल प्री सेल्स क्वेश्चन है मेरे जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है? सो लाइक कुछ लिमिटेशन होता है क्या सर इसमें टनल बनाने के लिए? एक फायरवॉल से मैं मल्टी साइड टू साइड उसी की तरह मल्टीपल टनल बना सकता हूँ? हाँ रघुवीर जी, आप बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए क्या रिक्वायर? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप ये शो वर्जन कमांड चलाते हैं, तो ये अभी वी है मेरा, ASAV है। तो ASAV क्या करता है? ASAV फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आप पैसे दो और बढ़वाओ, पैसे दो बढ़वाओ, लाइसेंस मिलता रहेगा, बढ़ाते रहो। इसको आपने ESXi में डाल रखा है, या आपकी जहां मर्जी है वहां डालिए, तो इसके फीचर्स बढ़ते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस। बट इफ यू टॉक अबाउट अ फिजिकल ASA, तो उस फिजिकल ASA में क्या होता है? उसमें होती है बॉक्स कैपेसिटी। तो उस बॉक्स कैपेसिटी पे क्या होता है? एक बॉक्स की कैपेसिटी होती है कि आप फॉर एग्जांपल एक बॉक्स पे 5000 टनल्स बना सकते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द लाइसेंस। जब आप लाइसेंस इंस्टॉल करेंगे तो वो लाइसेंस के बेसिस पे आपकी बॉक्स कैपेसिटी कैलकुलेट करके लाइसेंस इंस्टॉल होगा। आपने लाइसेंस लिया है कि हाँ जी मैं सिर्फ 750 टनल्स बनाना चाहता हूँ, तो आप 750 टनल्स बनाओ, आप लाइसेंस लो, आप 750 टनल्स क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपकी बॉक्स की कैपेसिटी 5000 है। एंड लाइक प्रोप्राइटरी होता है या जैसे मैं सोनिकवॉल के साथ में बना सकता हूँ इसका? नहीं, you need to repeat the question. So my box has a capacity of 5000 and I have a limitation of 750. That means I have a license install of 750. So that means I can connect 750 users. I can create 750 tunnels from this firewall. But there is no limitation that I cannot create a tunnel with SonicWall, with Fortinet. That is not mentioned anywhere. There is no limitation. नहीं, पर डिफरेंट वेंडर के साथ में बना सकते हैं ना मेरा? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। So that is not really possible, right? So if I have purchased the ASA and if I'm not able to configure a tunnel with SonicWall, then what is the use to purchase my ASA? I would have bought some other cheap product, right? So बिल्कुल there is no vendor limitation. ना। और कुछ बैंडविड्थ, कुछ स्पीड का भी होता है क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स? नहीं, वो तो आपके जो बेसिक लाइसेंस आता है, उस बेसिक लाइसेंस के ऊपर आपका जो चासी का इंटरफेस बैंडविड्थ है, बीट 1G और 10G, वो आपको थ्रूपुट मिलेगा, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है सर। और ऑलवेज अवेलेबल रहता है ना? कितना है इसका अवेलेबिलिटी? मेरे वाले का कितना है? मेरे वाले का तो शायद 1G होगा। हाँ, 1000 Mbps। ये तो 1G है, V है मेरा। ठीक है सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? तो सर कुछ क्वेश्चंस पूछो ताकि हमें भी मालूम हो जाए ना। हाँ, तो क्वेश्चंस आप लोग पूछोगे जो आपको क्लैरिटी चाहिए। एक्चुअली इस सेशन का इंटेंट ये था कि देखो सिक्योरिटी जो
फीचर्स है, जैसे फायरवॉल है ना। मेरे को कुछ लोगों से रिक्वायरमेंट आई थी कि भाई बेसिक फायरवॉल ऐसे कैसा क्या होता है, उसका काम क्या है ना, वीपीएन वगैरह ये क्या होते हैं। तो ये एक खाली इंट्रोडक्शन क्लास था, जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाए, जिन्होंने बिल्कुल फायरवॉल पे काम नहीं किया है या जिन्होंने फायरवॉल के बारे में सिर्फ थोड़ा बहुत सुना है, उनको कि एक आइडिया लग जाए कि फायरवॉल क्या है। इट्स सिमिलर प्रोडक्ट लाइक सिस्कोज राउटर, जिसमें हम लोग सिस्को के राउटर में भी हम लोग सिक्योरिटी फीचर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आईओएस में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, है ना। तो लेकिन फायरवॉल क्यों लेते हैं फिर? तो फायरवॉल जो है ना, वो अपने आप में एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर सिर्फ बेसिक सिक्योरिटी नहीं, मतलब एडवांस लेवल का, जैसे कि हमने बात करी हर तरह का सिक्योरिटी हम लोग लगा सकते हैं। वीपीएन कितने टाइप का उस पर डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ में फायरवॉल जो है उसमें क्लस्टरिंग, एक्टिव, स्टैंड बाई, एक्टिव बहुत सारे ये रोल्स, मतलब एक आर्किटेक्चर जो फायरवॉल का किसी भी नेटवर्क डिजाइन को ध्यान में रखते हुए अगर कोई बनाता है तो फायरवॉल वाली जगह फायरवॉल ही लगाया। अभी जैसे कई सारी चीजें ना, डीएमजी की हमने बात नहीं करी, जिनको इन्होंने इनसाइड 2 वाला जो एरिया मार्क किया था डीएमजी, तो डीएमजी में फायरवॉल लगेगा क्या? कई बार क्वेश्चन कहते हैं कि भाई हमारे अलग अलग वेंडर्स के फायरवॉल वाले भी क्वेश्चन आए जैसे, तो उससे भी थोड़ा मतलब इस सेशन से ये आइडिया हो गया कि फायरवॉल्स जो है वो हमारे नेटवर्क का एक इंटीग्रल पार्ट है। किसी भी नेटवर्क पे आप जाओगे, किसी भी कंपनी में आप जाओगे, जब नेटवर्क उठा के देखोगे तो वहाँ राउटर्स और स्विचेज नहीं, वहाँ पर फायरवॉल भी होंगे, वहाँ पर लोड बैलेंसर भी होंगे, वहाँ पर और भी बहुत सारे तरह के डिवाइस होंगे, वायरलेस के लिए डिवाइस होंगे, टेलीप्रेजेंस के लिए डिवाइस होंगे, CUCM वगैरह ये वो। तो इंटेंट इन सेशंस का यही है। अभी जैसे डेटा सेंटर का हम लोग एक सेशन रखेंगे, एक सेशन हम लोग कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजीज वाला भी रखेंगे, है ना। कोशिश करेंगे कि हम एक सेशन ना कंप्यूट पे रखें, एक स्टोरेज पे रखें, एक सेशन तो सभी को जैसे रखने की कोशिश है। लेकिन हमारा जो मेन कोर्स है ना वो CCNP वाला है, तो हम उसी पे चलेंगे। अगर किसी को स्पेसिफिकली कोई रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ज्यादा जानना है या ज्यादा मेरे को इसके बारे में सीखना है, पढ़ना है, तो just drop me a message. I'll try to help you. I'll try to patch you with the right kind of people where you can get in touch with them and start learning. So that's Okay. the only intent. Sorry to break you in. I've got couple of questions. So let me answer those questions. So I have a question from Anoop. I have one ASA. How could I change the password by CLI? बहुत बेसिक कमांड है। यूजर देखने के लिए आप ये कमांड चला सकते हो, शो रन यूजर। तो मैंने अभी 2 बना रखे हैं, एडमिन और सिस्को। तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं यूजर नेम, और जिस भी यूजर का पासवर्ड चेंज करना है नाम डालो, और पासवर्ड नया जो पासवर्ड आपको डालना है। Second question which I had from Utsav, and what he's trying to ask, let me scroll up. What if we are using interface ETH00 with ETH01 name if, will it work for SSH, or do we need to match interface and name if both for SSH? So Utsav, when you define the interfaces, you use different name if on both the different interfaces. You cannot use same name if on 2 interface. First. Second thing, when you define the interfaces, now you have a requirement to enable a SSH on outside interface. Now how do you do that? To enable the SSH on outside interface, you need to do that using this one, SSH, your specific subnet or host from which you are allowing SSH connection, and the zone. So my zone would be outside. Okay. सर जब ये कोई फायरवॉल खरीदते हैं तो कस्टमर को हम पूछते भाई हाउ मेनी यूजर्स यू हैव, तो बोलता है 200 यूजर्स। तो इसमें मुझे ये जानना है कि अपना क्या प्रोफाइल बनती है क्या पर यूजर की अपना फायरवॉल के अंदर, या कैसे कैलकुलेट होता है?
नहीं 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 नहीं, 200 यूजर्स की प्रोफाइल की बात तो कहीं आती नहीं है। वो फायरवॉल डिफरेंट होता है कि 200 यूजर्स के लिए अलग है लाइसेंस या कुछ इस तरह का होता है। कनेक्शंस या यूजर्स? यूजर्स जो नहीं 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 नहीं, बेसिकली आप जब फायरवॉल खरीदते हैं तो आप खरीदते हैं अपनी नेटवर्क रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि हाँ जी मेरे को सर्व करवाना है 10,000 कनेक्शन, 60,000 कनेक्शन, 1 करोड़ कनेक्शन, इतने आएंगे। अब वो कनेक्शन आप यूजर बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक यूजर अगर 50 टैब खोल के बैठेगा तो पता नहीं 500 कनेक्शन तो एक यूजर से ही हो गए। सो बेसिकली यू डिफाइन दैट यूजिंग योर कनेक्शंस। सो कनेक्शन कैपेबिलिटीज हर फायरवॉल की यू हैव इट इन डेटा शीट। जो फायरवॉल का मॉडल होता है उसकी डेटा शीट आप पढ़ो, उसके अंदर हर डिटेल होती है कि ये फायरवॉल कितने यूजर सपोर्ट करता है, इसका थ्रूपुट क्या है, और क्रिप्टो का ट्रैफिक अगर इतना आएगा तो ये कितना हैंडल कर सकता है, वगैरह वगैरह 50 चीजें होती हैं। तो वो आप डेटा शीट पढ़ेंगे ना किसी डिवाइस की, तब आपको आइडिया होगा। हेलो सर, एक क्वेश्चन है सर, ये फायरवॉल जो एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक को भी इंसेप्शन करती है या कैरी फॉरवर्ड करती है? कैसे? जैसे कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है और एन्क्रिप्टेड ट्रैफिक आता है, एन्क्रिप्टेड पैकेट आया तो उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा या उसको पैकेट को इंस्पेक्ट करेगा? वो आप डिफाइन कर सकते हैं भाई। देखो, जो दो चीजें हैं, आपने अपने फायरवॉल के ऊपर SSL VPN डाल रखा है, यानी कि यूजर्स घर बैठे लॉगिन कर सकते हैं फायरवॉल के अंदर और काम कर सकते हैं। तो यूजर्स का जब ट्रैफिक आएगा तो वो ASA पे आके डिक्रिप्ट होगा, फिर ही तो अंदर जाएगा। तो वो डिक्रिप्शन हो गया मेरा, डिक्रिप्शन करने के बाद में जो मेरे रैंडम चेक्स हैं वो मैं परफॉर्म करूंगा उसके लिए कि हाँ जी ये क्या भेज रहा है, ये अलाउड है नहीं है, वगैरह वगैरह। वो सारी चीजें वो आप डिफाइन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि उसको जो आप चीज बोल रहे हैं वो होता है डीप पैकेट इंस्पेक्शन। वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन करना है या नहीं करना। तो वो पहुंच जाएगा L7 तक, पूरा डीप पैकेट इंस्पेक्शन होगा, पैकेट खुलेगा, इंस्पेक्ट होगा, फिर आगे फॉरवर्ड होगा। So Omkar today will not be talking about SSL VPN. We'll be talking about basics of SSL VPN in next session maybe, and we'll try to configure a site-to-site tunnel in next session. Now, are we good to wrap up? Okay, thank you, Birbal sir. All right, so thank you, sir. Thank you, Birbal, for such a good session. Very informative and real good interactive session it was. Itne sare questions aaye, that's really nice. And thank you all for joining this session. From tomorrow, कल से हम लोग फिर हमारा normal class आगे बढ़ाएंगे with OSPF. I hope this session was informative for you. Thank you so much. Have a good day.